रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो जो भी लोग यहाँ पर बाद में इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग देखकर भी समझ जाएंगे। जिसका भी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई स्टॉक के अंदर एंट्री लेकर बैठे हुए हैं, उस स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, सभी स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी के पास अगर कोई स्टॉक्स है जिसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हो, तो वो स्टॉक्स सबसे पहले बताओ कि अगर किसी के पास कोई स्टॉक्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है, वो मुझे सबसे पहले बताओ। স্যার অনির্বাণ বলছি। हाँ हाँ हाँ, बोलो अनिर्बाण। স্যার এমএমটিসি কোম্পানি, তো এগুলো আমি নিয়ে রেখেছি অলরেডি। ओके, NMTC राइट। টিসি টিসি, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। अच्छा, এটা ক্রিপ্টো? হ্যাঁ স্যার, না না ক্রিপ্টো না স্যার, এনএসসি এনএসসি স্টক। স্পেলিংটা বলো। এ ডবল এম টিসি। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এটা। ঠিক আছে, ওকে। তো এই স্টকে তুমি অলরেডি এন্ট্রি নিয়ে আছো, তোমার লেভেল কত, কোন লেভেলে তুমি স্টকটাকে পারচেস করেছো? স্যার এটা দেখতে হবে স্যার। স্যার ওই নিচেই নিচেই স্টার্ট হয়েছিল ওইরকম জায়গায়। এরকম একটা জায়গা, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি ওই তো 41 টাকা টাকা এরকম। তো আমি তোমাকে রিকমেন্ড করব হোল্ড করার জন্য। ঠিক আছে, আমি তোমাকে হোল্ড করার জন্য হ্যাঁ স্যার। রিকমেন্ড করব। এর কারণটা হচ্ছে যে তুমি যে জায়গাতে এন্ট্রিটা নিয়েছো, ধরো তোমার এন্ট্রি লেভেল হচ্ছে, দিস ইজ ইউর এন্ট্রি লেভেল। অ্যান্ড হ্যাঁ স্যার। রিকমেন্ড করবার কারণটা হচ্ছে কি, দেখো, প্রথমত স্টক ইজ এ ডাউন ট্রেন্ড, এটা তো আমরা উইকলি দেখেই বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ, স্টক ইজ এ ডাউন ফরমেশনে। কিন্তু সেটা দেখলে হবে না, 2015 থেকে স্টক অ্যাকচুয়ালি সাইডওয়েজ একটা জোনের মধ্যে আছে, রাইট? তো 2000 এত বছর ধরে স্টক যেহেতু একটা সাইডওয়েজ জোনে আছে, যেখানে স্টক আপ যাচ্ছে ডাউন যাচ্ছে, তো একটা হিউজ এখানে প্রফিটেবিলিটির একটা চান্সেস আছে। যেহেতু টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের বেসিসে যদি বলি, স্টক এখন ওপরেই যাবে। তার কারণ হচ্ছে দিস ইজ এ সাপোর্ট লেভেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা সাপোর্ট লেভেল, মানে অ্যাকচুয়ালি ছিল একটা রেসিস্ট্যান্ট, সেটাকে ব্রেকআউট করে একটা সাপোর্ট বানালো, আবার সাপোর্ট, আবার সাপোর্ট, আবার সাপোর্ট, রাইট? তো একটা সাপোর্ট লেভেল, সাপোর্ট জোন এখানে বানিয়েছে। এবং তারপরে যদি আমরা এখানে ডিসকাস করি, ধরো ট্রেন লাইন, রাইট, বাইং ট্রেন লাইন। তো বাইং ট্রেন লাইনের বেসিসে দেখবো স্টক অলরেডি বাইং ট্রেন লাইনকে ব্রেকআউট করেছে, এবং এখানে যদি আমরা দেখি সেই সাপোর্ট জোনই একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছে, রাইট? সো এই যে প্যাটার্নটা, এই প্যাটার্নটা হচ্ছে কি প্যাটার্ন? এটা হচ্ছে ইনভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডার প্যাটার্ন, অ্যান্ড অলরেডি প্যাটার্নটা একটা ব্রেকআউট লেভেলের মধ্যে প্যাটার্নটা এখানে ঘুরছে। তো আমি তোমাকে হাইলি রিকমেন্ড করবো স্টকটা হোল্ড করার জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের বেসিসে। আর যদি হ্যাঁ স্টকের স্যার। ফান্ডামেন্টাল আমরা দেখি, তাহলে ফান্ডামেন্টাল একদমই ভালো না। ঠিক আছে, তো লং পজিশন রাখা তো কোনো চান্সই নেই যে স্টকে তুমি লং টার্ম না অবধি স্যার। একটা হোল্ড করবে, লং পজিশনে কোনো চান্স নেই। কিন্তু শর্ট পজিশনে তুমি একটা সুন্দর রিটার্ন পাবে। এখানে টার্গেট লেভেল যদি আমি তোমাকে বলি, তোমার এই জায়গা থেকে তোমার মিনিমাম তোমার টার্গেট লেভেল হওয়া উচিত এই অবধি। ঠিক আছে, মানে 49 টাকার আশেপাশে তোমার টার্গেট লেভেল হওয়া উচিত। এবং স্টকটা আমার যত ধারণা খুব শীঘ্রই এই লেভেলে চলে যাবে। ঠিক আছে, একটা মানে সার্টেন স্টপ টাইমের লস মধ্যে। ট্রোলিং করে করে চলবো স্যার। স্টপ লস ট্রোলিং, হ্যাঁ, তুমি ডেফিনেটলি স্টপ লস ট্রোলিং করতে পারো। ফার্স্ট স্টপ লস হচ্ছে এই জায়গাটা, 39। ঠিক আছে, এই লেভেলটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টপ লস থাকবে। যখন স্টকটা উপরে গিয়ে আবার নিচে আসবে, তখন আবার তোমাকে ট্রোলিং করতে হবে, এবং ডেইলি বেসিসের ক্যান্ডেল স্টিকের মধ্যে তোমাকে ট্রোলিং করতে হবে। আর আমি যদি ট্রাইডেন্টের কথা বলি, ট্রাইডেন্ট অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যে টুলটা তৈরি করেছি ট্রাইডেন্টের কথা যদি বলি, তাহলে ট্রাইডেন্ট অলরেডি এখানে আই থিঙ্ক সিগন্যাল দিয়েছে, দেখো অলরেডি সিগন্যাল এখানে প্রোভাইড করেছে। ঠিক আছে, এবং এখান থেকে স্টক উপরে যাবে একটা চান্সেস আছে। ট্রাইডেন্ট আমি সবাইকে দেবো, কিন্তু এখন না, যেহেতু এখন একটা টেস্টিং পিরিয়ড চলছে, এটা সবাই एवरीवन नो दिस, दैट्स वाई ट्राइडेंट तो अभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो স্যার আরেকটা আছে আইসিএল স্যার।
ICIL, ICIL। ओके ICIL, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहले इस जगह पे देखो, एक्चुअली मैं हिंदी में बात करूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हिंदी में यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे विनय, वो हाँ। तो हिंदी है, मतलब टोटली बंगाली नहीं समझ में आता, तो हिंदी में बात करते हैं। तो अगर इसके बारे में बताएं तो पहली बात तो यहाँ पर एक पैटर्न बना, इसकी वजह से स्टॉक नीचे गिर गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर डेली बेसिस पे देखें तो स्टॉक इज अ डाउन ट्रेंड एंड फिर यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट आया है। एंड इसी जगह पे देखो, इसके तुम यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लिया था? एंट्री नहीं लिया यहाँ पे, तो मैं एंट्री लेने का सोच सोच रहा हूँ। देखो अगर एंट्री लेना है तुम्हें तो इसके लिए देखो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, एक बहुत बढ़िया कैंडल दे चुका है, तो एंट्री लेने का चांसेस जा चुका है। अगर एंट्री लेना है तो ये वाला जो ट्रेंड है, ट्रेंड के ऊपर स्टॉक को आने दो, ठीक है। स्टॉक को ट्रेंड के ऊपर आने दो एंड ये वाला जो लेवल्स है इसी लेवल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इसी लेवल के अंदर आना चाहिए, मतलब 150 के नीचे से लेकर 140 के अंदर स्टॉक को तुम यहाँ पर एंट्री कर सकते हो एज ए बाइंग ट्रेंड लाइन बना के। मतलब जैसे मान लो कि स्टॉक इस जगह से नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद यहाँ से ऐसे ऐसे गिरा, ठीक है। फिर ऐसे जब ऊपर उठना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर बनाओ एक बाइंग ट्रेंड लाइन, बाइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तो इस जगह पे एंट्री लेना चाहिए। अगर फंडामेंटल इसके बारे में बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं, काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके, फिर भी ओके। आज काफ़ी अच्छा नहीं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक्चुअली जिस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो यहाँ पर उतना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा बहुत बताया, मतलब सेल्स एक्चुअली कंपनी, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी के अंदर जब हम काम करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करें, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा फोकस पे रखना चाहिए, हिडन फोकस पे रखना चाहिए। एक सेकंड। हम्म, ओके, तो हमेशा एक हिडन फोकस पे रखना चाहिए। वो क्या? जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू, एक्चुअली कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या नहीं, इसको तुम्हें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखें, हाँ कंपनी एवरी ईयर उसका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड उसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अंदर एंट्री लिया जा सकता है, लेकिन करेक्शन के बाद। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे एंट्री लो और स्टॉक गिर जाए फिर अफसोस करो कि यार स्टॉक तो गिर गई, लेकिन अगर इस जगह पे स्टॉक आ जाए डेफिनेटली इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली एंट्री लेना चाहिए। एंड अगर मैं ट्राइडेंट के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर ट्राइडेंट क्या बोल रहा है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो मैं वीकली पे यहाँ पर चला जाऊँगा एंड ओके। वीकली पे अगर देखें तो अभी तक ट्राइडेंट ने कोई सिग्नल वीकली पे नहीं दिया, लेकिन स्टॉक जब एक करेक्शन पे आएगा, आने के बाद फिर यहाँ पर ट्राइडेंट सिग्नल देगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वेट करो करेक्शन फेज के लिए, पूरा करेक्शन दे दे फिर जाके एंट्री ले सकते हो। सर और एक है एंजल वन। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, लेकिन एक बार एंट्री अगर इसके अंदर ले लिया तो निकलूंगा नहीं कभी, ठीक है। तो वो तो मैं ऑलरेडी ऑलरेडी तो इंटर हो चुका मैं। वेरी गुड, लेकिन मैं ये वाला प्राइस पे मैं कभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स मेरा ऐसा है जिस स्टॉक के अंदर मैं, मतलब बहुत ही कम प्राइस में उसके अंदर मैं एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन पे आ गया तो अभी खरीद लूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके अंदर मैं बहुत ही कम, एकदम कम प्राइस के अंदर एंट्री लेना चाहता हूँ। तो उनमें से एक एंजल ऑन भी है, बिकॉज इट्स अ डीमैट अकाउंट एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो लेकिन सस्ता में ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसी जगह पे तो एंट्री करूँगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे बात यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करूँ तो जैसे ये वाला हो गया उसका एक सपोर्ट जोन एंड स्टॉक ने यहाँ पर एक पैटर्न वगैरह बनाया, देखो यहाँ पर हाँ सर। अगर नीचे की यहाँ पर चला जाए तो यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, तो पैटर्न को स्टॉक ब्रेकआउट करेगा कौन सी जगह पे? इस जगह पे पैटर्न ब्रेकआउट एंड बाइंग ट्रेंड लाइन ऑल्सो ब्रेकआउट। एंड अगर छोटा करके देखे, अगर 3 घंटे के अंदर चले जाए तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आएगा। देखो ये हो गया एक पैटर्न, ठीक है, दिस इज़ अ पैटर्न।
तो तो मैंने पैट एक दिन का पैटर्न में किया था, एक दिन का पैटर्न। नहीं है, 3 घंटे का हिसाब से पैटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन वो भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के बाद जाके मतलब दोबारा यहाँ पर रिवर्सल वाला पैटर्न दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी स्टॉक इस जगह से ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जा सकता है। कितना तक ऊपर जा सकता है देखो, एज ए टारगेट लेवल मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर तुम 1700 के नीचे तुम अपना टारगेट बना सकते हो, ठीक है। ये वाला जो लेवल्स है 1700 के नीचे टारगेट बहुत अच्छा है। फंडामेंटल इसका अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने पहले से इसको देख कर रखा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, देखो तो फंडामेंटल देखो बढ़िया, कितना बढ़िया इसको देखो। कंपनी का जो पी रेशियो है 16 है, इंडस्ट्री पी रेशियो 25, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है 2162, ठीक है। एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास बहुत सारे यहाँ पर कैश इन हैंड ऑलरेडी भरा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत अच्छा है, आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। कंपनी सेल्स 65.7% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 84.7%, ठीक है। मतलब सभी यहाँ पर चीज़ अच्छा है। एंड अगर प्रोस के बारे में बात करें तो प्रोस भरे पड़े है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, मैंने बताया कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है कंपनी का। एक्चुअली कोई भी डीमेट अकाउंट, मतलब जैसे जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो भी डीमेट अकाउंट, मतलब इसका तो शेयर नहीं है सर, अभी वो तक नहीं, एंजल अभी ऑन का। हाँ, अभी तक कोई शेयर नहीं आया है, जीरोधा आप स्टॉक का कोई शेयर नहीं आया था। लेकिन जो डीमैट अकाउंट है, अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फ्यूचर बहुत अच्छा है, इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि एंजल ऑन फ्यूचर में 10,000 रुपये भी चले जाएगा, ठीक है। कोई इतना बड़े बात नहीं है। लेकिन मैं तो इस लेवल पे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं हमेशा प्राइस के बेसिस पे काम करता हूँ। जितना भी टेक्निकल देखता हूँ, जितना भी काम करता हूँ, फंडामेंटल देखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा प्राइस के बेसिस पे काम करता हूँ। जैसे कि अगर सर और एक स्टॉक है, वोल्टास का है। ओके, वोल्टास का थोड़ा कर वोल्टस दीजिए। यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है। एंड मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, अगर प्रॉफिट चल रहा है तो निकल जाओ, ठीक है। ओके सर। सिंपल सा बात है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़, देखो अभी ये जो वोल्टस ना है, टेक्निकल एनालिसिस इज द मोस्ट पावरफुल सिस्टम, लेकिन मैं पहले इसका फंडामेंटल दिखाता हूँ। देखो वोल्टस, तो फंडामेंटल देखो बढ़िया, ठीक है। फंडामेंटल बहुत बढ़िया। ओके, तो फंडामेंटल देखो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब कंपनी का फंडामेंटल सारे के सारे अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं तुमको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा निकल जाने के लिए, क्यों पता है? क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर इस तरह का एक फेज़ यहाँ पर आ जाता है, देखो यहाँ पर एक फेज़ है, ये जो फेज़ यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, इस फेज़ को क्या कहा था? इट्स रेन बाउंड, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, सिंपल बात। जब इतना बड़े फ्री फॉल होता है, फिर जाके स्टॉक साइडवेज होता है, तब बाय नहीं करना चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए, कंपनी जितना फंडामेंटली अच्छा ही क्यों ना हो। यहाँ पर इग्नोर करो, क्योंकि कुछ दिन के बाद देखोगे कि स्टॉक इस जगह से दोबारा ऐसे गिर गया। इसको कौन से पैटर्न कहा जाता है पता है? कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर जो तुम यहाँ पर देखोगे, जैसे राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग राइजिंग वेज या फिर बैरिश बैरिश रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न है, इसके अंदर तुमको ये सब मिल जाएगा कि स्टॉक कंटिन्यू हो रहा है जब, तब इस जगह पे एक पैटर्न वगैरह बनता है, या फिर बुलिश पैटर्न की तरह यहाँ पर एक पैटर्न वगैरह बनता है, फिर पैटर्न ब्रेकआउट करके स्टॉक गिर जाता है। प्रॉफिट चल रहा है, सिंपली इसको छोड़ दो, हाँ हाँ, चल रहा है चल रहा ठीक है। है। ओके सर, ओके सर। और कुछ नहीं है सर मेरा। ओके, तो ठीक है। तो अभी किसी और के पास अगर कोई क्वेश्चंस है, मतलब कोई स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हो या फिर किसी, तो बता सकते हो। ओके, ओके, तो अभी हम यहाँ पर हासीपुर हासीपुर, इफ़ यू हैव एनी स्टॉक्स देन टेल मी, मैं इसके ऊपर एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है। हेलो हासीपुर, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हारा माइक्रोफोन ऑफ है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते। हाँ, राज राशि, हाँ हाँ बोलो। राजरत्न ग्लोबल वाले थोड़ा देखेंगे। अ, तुम्हारे बात ठीक से सुनाई नहीं आया, दोबारा एक बार बोलो प्लीज़। राजरत्न ग्लोबल बायर। राज रतन, ओके, ये वाला स्टॉक राइट?
हाँ, तो ठीक, 1135 का है ना। हाँ तो ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली देखेंगे, ठीक है। तो वीकली में तो एकदम बहुत बढ़िया फेज चल रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने एंट्री लेकर बैठे हुए हो या फिर एंट्री लेना चाहते हो? लेना चाहते हैं। एंट्री लेना चाहते हो, राइट? हाँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, वीकली में हमने यहाँ पर एक नॉर्मली ट्रेंड को यहाँ पर जजमेंट किया कि स्टॉक इज अप ट्रेंड, स्टॉक्स मतलब अप ट्रेंड मतलब ज़्यादा ही अप ट्रेंड है। अगर फंडामेंटली बात करें तो स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। ओके, 5,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट ये भी अच्छा है, ROE अच्छा है। इंट्रेंसिक वैल्यू अगर बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत ज़्यादा में चल रहा है, मतलब फंडामेंटली इसका जो वैल्यू है उससे ज़्यादा करंट प्राइस चल रहा है। इंडस्ट्री का जो पी है 14, कंपनी का पी चल रहा है कितना 42, ठीक है। एंड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, एंड कंपनी का प्रोज भी यहाँ पर बहुत सारे है। कंपनी 45% एवरी ईयर यहाँ पर ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा है। अगर ओवरऑल बात करें, कंपनी अभी फिलहाल प्रॉफिट में है एंड प्रॉफिट देगा टेक्निकली अगर बात करें। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह के स्टॉक के ऊपर एंट्री लो तुम, ठीक है। अभी मैं क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा? सबसे पहले बात तो है कि स्टॉक इज अप ट्रेंड, तो हमेशा एक करेक्शन फेज में काम करना चाहिए, हमेशा करेक्शन फेज। लाइक देखो, यहाँ पर ये जो लेवल्स है राइट, 400 का जो लेवल्स है, ये हो गया एक तरह की सपोर्ट लेवल, फिर ये हो गया एक तरह की सपोर्ट लेवल, फिर ये हो गया एक तरह की सपोर्ट लेवल। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड बनाऊँ तो ट्रेंड के हिसाब से दिस इज़ अ ट्रेंड, ये हो गया एक तरह की ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के बारे में बताएं तो एक प्रोबेबिलिटी ऐसा है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, कि ये स्टॉक इस जगह से थोड़ा बहुत गिरावट दे सकता है, ठीक है। इस जगह से थोड़ा बहुत गिरावट देगा, जब ट्रेंड के ऊपर आएगा तभी जाके काम करना है। अभी यहाँ पर तुम देखोगे कि 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ने कोई गिरावट नहीं दिया, इस जगह से स्टॉक सीधा और भी ऊपर चला गया, जा सकता है। लेकिन अगर तुम इस मतलब एकदम ऊपर की साइड पे काम करोगे तब क्या होगा, लॉस होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन जब तुम नीचे की साइड पे काम करोगे, लॉस अगर होने का चांसेस भी है तो बहुत कम, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है कि लॉस होने का चांसेस बहुत, मतलब अगर लॉस हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो छोटा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी अगर देखोगे 2022 में यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% ग्रो कर चुका है, 90% ग्रो कर चुका है। तो एक करेक्शन फेज़ में आना चाहिए। तो अगर स्टॉक करेक्शन फेज़ में आ जाए तभी जाके इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहिए, यही मेरा रिकमेंडेशन है। एंड अगर मैं ट्राइडेंट के बारे में बताऊँ तो ट्राइडेंट भी वही सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पर बताएगा। देखो कि यहाँ पर जो लेवल्स है, इस तरह के लेवल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर ट्राइडेंट के बारे में बताओ तो ट्राइडेंट भी देखो यहाँ पर ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बाइंग सिग्नल प्रोवाइड किया और तुमने मान लो कि स्टॉक के ऊपर तुमने बाई किया, ठीक है। एंड स्टॉक इसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसी जगह पे दोबारा ट्रेंड के पास आ गया, आने के बाद तुमने ट्राइडेंट का बाई सिग्नल यहाँ पर फोकस किया, फिर यहाँ पर 59% प्रॉफिट। फिर जाकर ट्राइडेंट ने यहाँ पर मान लो कि ट्रेंड के आसपास आ गया एंड ट्राइडेंट ने यहाँ पर सिग्नल दिया, ठीक है। फिर तुमने काम किया, फिर जाकर ऑलमोस्ट 97% प्रॉफिट। तो अब ये स्टॉक को गिरना दो, स्टॉक पहले गिरने के बाद फिर काम करो। लेकिन इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, कि 6 महीने के बाद स्टॉक गिरावट दे, 7 महीने के बाद, 1 साल के बाद स्टॉक गिरावट दे, ठीक है। क्योंकि जब स्टॉक गिरावट देता है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर उठने के लिए स्टॉक को यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 महीने यहाँ पर लग चुका है, राइट। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 महीने लग चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है जब गिरे तब भी यहाँ पर 2-3 महीने, गिरते गिरते भी 2-3 महीने यहाँ पर लग जा सकता है। तो तुमने यहाँ पर बाई किया, फिर स्टॉक 3 महीने गिरा, फिर 3 महीने उसी लेवल पर चला गया, 6 महीने तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो गया, और फिर जाके फिर यहाँ पर स्टॉक प्रॉफिट पे रन किया, तो जब जाके तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो उससे बेहतर है कि पैसा सेव करके रखो या फिर कोई दूसरे स्टॉक पे इन्वेस्ट करो, जब एक गिरे तब एंट्री लेना है, जब ऊपर उठे तब जाके काम करूँगा, ठीक है। तो मेरा डिसीजन यही है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा है लेकिन बाय करने का सही पोजीशन, सही मूड में नहीं है अभी। और कोई स्टॉक्स है तुम्हारे पास? ऊपर फिर के लिए ये बना रहेगा न्यूट्रल फ्यूल सिस्टम। हाँ क्या बोला, फिर से एक बार बोलो ज़रा। UCAL, न्यू, यू अम्ब्रेला, UCAL UCAL, ओके। फ्यूल सिस्टम, फ्यूल ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करता हूँ।
ओके, तो डेली पे अगर स्टॉक को देखे, दिस इज़ द स्टॉक्स, एंड अगर वीकली के बारे में बताए तो दिस इज़ द स्टॉक्स। वेरी गुड। एक सेकंड। देखो पहली बात तो यही है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल बात। रिकमेंड नहीं करूँगा, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न फंडामेंटल अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न, जो कंपनी 1985 में शुरू हुआ एंड आज तक उसने इतना बड़ा कुछ अचीव कर नहीं पाया, वो कंपनी आगे चल के क्या करेगा मुझे नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म के बारे में बताए तो लॉन्ग टर्म तो ख़त्म हो गया फंडामेंटली देखकर, क्योंकि कंपनी भी छोटा है, ठीक है। एंड और अगर मैं बात करूँ टेक्निकली, अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ यहाँ पर तुम नोटिस करो। टेक्निकली यहाँ पर एक फ्री फॉल हुआ था। यहाँ पर देखो, टेक्निकली यहाँ पर एक फ्री फॉल हुआ था, ठीक है। ये जो फ्री फॉल यहाँ पर हुआ था ना, मतलब इतना बढ़िया जो यहाँ पर गैप था, फ्री फॉल हुआ था, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड जोन है। तो उसी कंसोलिडेटेड जोन में यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो लेवल है इसको फिल करने के लिए स्टॉक अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिल ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तुम यहाँ पर मान लो एंट्री लिया, एंट्री ले तुम तो अगर ले भी नहीं पाओगे अगर तुमने ऑलरेडी एंट्री ना लिया। तो इसके बाद देखोगे स्टॉक, इसके बाद मंडे को दिन भी देखोगे स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट देखा 5 to 10% आई थिंक कितना हो सकता है यहाँ से अगर देखें तो 6% यहाँ पर ऑलमोस्ट मिनिमम होना चाहिए, मतलब 5% प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखोगे उसके दिन भी प्रॉफिट यहाँ पर रन करे। फिर जाके देखोगे स्टॉक फिर से साइडवेज चला गया, एंड साइडवेज जाते जाते यहाँ से फ्री फॉल फिर से स्टार्ट होगा। एंड इसका अगर एक लाइव एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊँ तो एक लाइव एग्जांपल देख सकते हो। देखो हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह को देखो कि कभी कभार बहुत मतलब जो बहुत बड़ा फ्री फॉल होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गैप है एंड स्टॉक गिर गया, इस जगह से स्टॉक सीधा गिर गया, फिर स्टॉक गिरावट दिया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन ये वाला गैप को फिल नहीं कर पाया, फिर और भी गिर गया। गिरने के बाद फिर से यहाँ पर उठने की कोशिश किया। जब स्टॉक उठने की कोशिश की, इनफैक्ट मैंने खुद भी यहाँ पर एंट्री लिया था, एंड एक दिन के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर ग्रुप को तुम फॉलो करोगे तो ग्रुप में पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोल में एंट्री था, एंड एक दिन के बाद ही प्रॉफिट में छोड़ दिया। फिर 2 दिन के बाद फिर गैप, फिर डाउन। यहाँ पर देख रहे हो ना, ऊपर उठा, लोगों को यहाँ पर अट्रैक्शन दिया कि हाँ यहाँ पर आके स्टॉक परचेज करो, स्टॉक परचेज करो। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, स्टॉक लोग यहाँ पर एंट्री लिया, फिर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर गया, 5 to 7% ऊपर गया, फिर इतना बड़ा प्रेशर आया कि गिर गया। अब ये उठ नहीं पाएगा, फिर से गिरते रहेगा अभी। तो इस तरह के स्टॉक के ऊपर एंट्री लेना चाहिए। जैसे कि ये वाला एरिया पे देखो, इनफैक्ट इस एरिया में तो मेरा खुद का एंट्री था। देखो यहाँ पर देखो, इस जगह पे मैंने खुद एंट्री लिया था, एंड यहाँ पर एक स्टूडेंट्स भी है, वो भी यहाँ पर एंट्री लिया था, विनय, उसने भी यहाँ पर एंट्री लिया था। बहुत पहले की बात है, आई थिंक 1-2 साल, স্যার 2020। স্যার আমারও অনেক হয়েছিল এই স্টকটাতে হিন্দ পেট্রো। एकदम। सो यहाँ पर उसने भी एंट्री नहीं था, विनय आई थिंक। तो फिर ऊपर गया, फिर इस जगह पे मैंने उसको सेल कर दिया था, लेकिन बाद में यहाँ पर स्टॉक गिर गया था, ठीक है। एंड फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर आता है ना, इस प्रेशर के वजह से स्टॉक टिक नहीं पाता, मतलब कंटिन्यूसली अप ट्रेंड नहीं रह पाता।
अगर कोई अप ट्रेंड स्टॉक में, अगर अप ट्रेंड फेज में अगर इस तरह के कभी भी प्रेशर देखो तुम, तो समझ जाना कि करेक्शन मतलब बाहर निकलने के लिए तुम्हें टाइम देगा थोड़ा बहुत, कि हाँ तुम बाहर निकल जाओ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद वो स्टॉक प्रॉफिट में नहीं रहता ज़्यादातर टाइम, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर स्टॉक नीचे गिरे दैट इज़ डिफरेंट, जैसे कि मान लो कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो ये सब ठीक है कि इस जगह से फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फेज इस तरह के बना, मतलब ऐसे ऊपर गया फिर अचानक देखा इस जगह से नीचे गिर गया फिर ऊपर उठा, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद देखो कि ब्रेकआउट करके स्टॉक और भी गिर गया, इस तरह के अगर फेस कभी दिख जाओ तो इग्नोर ही कर दो, सीधा इग्नोर कर दो, ठीक है। तो कोई और स्टॉक्स है? तुम्हारे पास कोई और स्टॉक है राज, नहीं ऋषि? नहीं ओके ठीक है, तो नहीं नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अनिर्बाण हो चुका है। अभी रूपम, अगर तुम्हारे पास कोई स्टॉक्स है तो यहाँ पर तुम बता सकते हो। सर हेलो। हाँ 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 रूपम बोलो, तुम्हारे पास अगर कोई स्टॉक्स है बता सकते हो। सर स्टॉक्स के बारे में तो मैं थोड़ा बाद में अच्छा पूछना निफ्टी, चाहूँगा, तुम तो पहले कुछ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट? नहीं नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं। मैं आज कुछ और पूछना चाहता हूँ कि लोअर सर्किट क्या है वो। मुझे एक दोस्त ने कहा कि लोअर सर्किट जब लगता है तो वहाँ पे सिर्फ देखने ही पड़ता है कि मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन हाँ वो शेयर मैं सेल नहीं कर सकता, तो वो क्या चीज़ है और उससे कैसे बचे। ठीक है, तो लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो। और अपर सर्किट क्या है? लोअर हाँ, सर्किट तो ठीक है, अपर सर्किट में भी वैसा ही होता है। अपर सर्किट में भी वैसा ही होता है, पैसा सिर्फ आता है, ठीक है, एंड लोअर सर्किट में पैसा सिर्फ चला जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ लोअर सर्किट एंड व्हाट इज़ अपर सर्किट बेसिकली। देखो अगर इसके बारे में मैं बताऊँ तो कोई भी स्टॉक्स, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स मतलब एक्चुअली इसको किस तरीके से बनाया गया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डिमांड बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पैसा वाला मान लो उसको ये पता चल जाता है कि कल या फिर आज एक न्यूज़ निकल के आ गया कि न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से इस ईयर 200% प्रॉफिट किया कंपनी, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, शेयर को बाई करेगा, राइट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करेगा। तो इसी तरह अगर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करें तो शेयर का प्राइस एक ही दिन के अंदर बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है, एक ही दिन के अंदर। एंड उसी तरह अगर कोई बैड न्यूज़ आ गया, मान लो कि सीईओ गुजर गया या फिर मान लो कि कंपनी ने घोटाला किया, तो क्या होगा कि लोअर सर्किट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मतलब एज अ प्रोबेबिलिटी ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी गिर सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। एंड शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर पैनिक बहुत ज़्यादा काम करता है। तो जब पैनिक क्रिएट होता है तो बहुत ही तेज़ी से स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब एक होता है स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करता है, एक होता है स्टॉक एकदम सीधी तरीके से गिर जाता है, ठीक है, दो होता है फेस। अभी एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी का रेगुलेशन की अनुଯାयी एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम के मुताबिक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगाया गया कोई भी स्टॉक के ऊपर। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है? अपर सर्किट का मतलब होता है एक लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब मान लो कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो अगर स्टॉक 10% से ऊपर अगर स्टॉक चला जाए तो बंद कर दिया जाएगा स्टॉक को, कंपनी को, मतलब उस समय 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक ही दिन में? हाँ एक ही दिन में, उसी दिन उसी समय, ठीक है। एंड उसी दिन मान लो कि आज मार्केट चल रहा है फिलहाल, मान लो कि स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, तो 100 से ऐसा बनाया गया है कि 5% या फिर 10% के नीचे अगर स्टॉक गिर जाए, ठीक है, मतलब मान लो कि एट लेवल कि 95 में अगर स्टॉक आ जाए या फिर 90 के ऊपर स्टॉक आ जाए तो स्टॉक को लोअर सर्किट लगा देगा, यानी स्टॉक को बंद कर देगा, कोई भी बंदा खरीद नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर शॉर्ट करने की, मतलब सभी लोग यहाँ पर बेचना चाहता है लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाहता, सभी लोग बेचना चाहता है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो कि मान लो तुमने यहाँ पर तुमने फ़िश खरीदा, राइट, जैसे तुम्हारे यहाँ पर इसका ही बिजनेस है, तुमने फ़िश खरीदा, तो सभी लोग यहाँ पर क्या किया
मान लो कि तुम्हारे पास फिश है, तुम्हें पता है कि कल ये खराब हो ही जाएगा 100%, इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा कल, मतलब एकदम खराब हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे, आज कोई भी दाम मिले, कुछ भी मिले, तुम उसको बेच दोगे, राइट। अगर 100 का फिश अगर तुम 10 रुपये में भी बेचना चाहो तब भी बेच दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो गिर जाएगा, मतलब उसका वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह लोअर सर्किट भी ऐसे ही लगता है कि सभी को लगता है कि स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, सभी को लगता है। तो स्टॉक जब गिरेगा तब जाके क्या होता है कि एक लोअर सर्किट लगा देता है कि उसके नीचे स्टॉक नहीं गिर सकते, यानी जो पैनिक होता है, इस पैनिक को बंद करने के लिए, कोई बंदा स्टॉक सेल नहीं कर सकता, इस पैनिक को बंद करने के लिए वहाँ पर मतलब बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस और भी नहीं नीचे गिर पाते, ठीक है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाता है तब स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। एंड ये सब चीज़ मैक्सिमम टाइम जिस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो कंपनी है, उसके अंदर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। छोटा मार्केट कैप वाला जो कंपनी है, एक स्टॉक है, जैसे इसके ऊपर मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ, हिंदुस्तान मोटर्स, आई थिंक, ओके, हिंदुस्तान मोटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दिस इज ए अपर सर्किट, ठीक है, ये हो गया अपर सर्किट, सीधा अपर सर्किट, मतलब ऊपर उठ रहा है, मतलब बायर को लग रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मतलब फ्यूचर में कंपनी बहुत ग्रो करेगा, तो इसके वजह से मतलब इतना खरीदने के लिए सभी लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, ठीक है, सभी लोग बैठे रहते हैं। एंड फिर स्टॉक का प्राइस एकदम हाई डिमांड पे चला जाता है, लेकिन 11 पे जाके क्यों बंद हुआ, उसी एक ही दिन तो यहाँ पर 26 में जा सकता था, राइट, लेकिन 11 पे इसलिए जाके बंद हुआ क्योंकि वहाँ पर अपर सर्किट है। उसके बाद कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी का जो स्टॉक में ट्रेड होना बंद कर दिया जाएगा। फिर जाके जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, फिर बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया। इनफैक्ट डेफिनेटली यहाँ से कितना, यहाँ से 10 से अगर ले तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 142% यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट दिया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट मतलब यहाँ पर बुक कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 5 लाख लगाया था तो 10 लाख हो चुका है, ठीक है, 5 लाख निकाल लेते। तो जब वो पैसा निकालते तब स्टॉक सीधा ऊपर से गिर जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरता है। फिर दूसरा दिन लोअर सर्किट लग गया, क्यों, क्योंकि उसी बंदा मतलब बेचने के लिए, मतलब कोई भी प्राइस में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी प्राइस कितना, एक मिनिमम तो रेंज होना चाहिए कि हाँ इसका मिनिमम प्राइस पहले था 26, अभी 25 यानी 5% नीचे 25, ठीक है। फिर 23 का 5% यहाँ पर नीचे मान लो कि 21.95 इस तरह का कुछ, तो यहाँ पर एक लेवल बनाया जाता है जो NSE द्वारा यहाँ इसको नियंत्रण किया जाता है कि कोई भी स्टॉक का एक अपर सर्किट हो, एक लोअर सर्किट हो। कोई भी स्टॉक में अपर सर्किट 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है। एक दिन के अंदर कोई भी कंपनी 2 बार या फिर 3 बार यहाँ पर बंद हो सकता है। पहले अपर सर्किट लगा या फिर लोअर सर्किट लगा, मार्केट बंद हो गया, फिर उसको खुला, फिर अपर सर्किट लगा या फिर लोअर सर्किट लगा, फिर बंद हो गया, फिर खुला, फिर बंद हो गया। तीसरे बार बंद होने के बाद टोटली कंपनी के अंदर ट्रेड होना उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ हाँ। तो इसको देखने के लिए एकदम सिंपल सा वे है, जैसे मैं एक डेमो अकाउंट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे स्टार सीमेंट, राइट, यहाँ पर है अभी फिलहाल। तो स्टार सीमेंट में अगर मैं यहाँ पर मार्केट डेप्थ के अंदर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पर देख पाओगे कि अपर सर्किट कितना है, 112.60, मतलब 112.60 पे अगर स्टॉक एक ही दिन के अंदर चला जाए अपर सर्किट लग जाएगा, ठीक है। लोअर सर्किट कितना है, 75.10। तो अगर स्टॉक 93 से 75.10 पे आ जाए अपर सर्किट लग जाएगा एक ही दिन के अंदर, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है मैक्सिमम टाइम जो कंपनी होता है, कंपनी का स्ट्रक्चर देखकर ही तुम समझ सकते हो कि कौन सी कंपनी में अपर सर्किट लग सकते हैं, लोअर सर्किट लग सकते हैं। जैसे कि ये वाला हिंदुस्तान मोटर वाला जो कंपनी है, ये अपर सर्किट लग के ऊपर गया फिर नीचे आया, तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर भी फ्यूचर में फिर से अपर सर्किट लगे, फिर से लोअर सर्किट लगे। ऐसा बहुत सारे कंपनी है जिसका चार्ट का जो स्ट्रक्चर उसको देखकर ही समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, अपर सर्किट लगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर सर्किट लग के नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे स्टॉक होगा, मतलब जब बायर एग्रेसिव होता है या फिर सेलर एग्रेसिव होता है तब मार्केट के अंदर अपर सर्किट लगता है। लेकिन कौन से स्टॉक पे लगता है, ज़्यादातर जो मतलब एक्चुअली नैनो कैप है, स्मॉल कैप भी नहीं कहूँगा, मतलब 1000-2000 करोड़ की जो कंपनी है उसके अंदर भी बहुत कम अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लगता है। लेकिन जो मतलब 500 करोड़ की कंपनी है, 300-400 इस तरह की जो कंपनी है, मैक्सिमम टाइम
मतलब 95% टाइम या फिर 90% टाइम उस तरह की कंपनी के अंदर अपर सर्किट इसलिए लगता है क्योंकि जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं ना, उनके पास मतलब हज़ारों करोड़ है। मतलब मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूशनल फंड या फिर हेज फंड या फिर म्यूचुअल फंड, तो इसने सोचा कि हिंदुस्तान मोटर का फ्यूचर अच्छा है, तो चलो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, अभी मार्केट क्या भी चल रहा है इसका, मतलब मान लो कि 200 करोड़ चल रहा है और वो बंदा सोचा कि मैं 100 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, तो 100 करोड़ कितना में करेगा, मतलब जितना शेयर है उतना ही तो उठाएगा, राइट। तो शेयर जितना लोग हाँ बेचा, तो जब बेचना स्टार्ट किया तो खरीदता, तो अभी को बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, अपर सर्किट लग के बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से चलता है टोटली सिस्टम। लेकिन जो बड़े कंपनी है जहाँ पे मान लो कि 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई बंदा 100 करोड़ भी खरीदना चाहता है, वहाँ पर डेली ट्रेड होता है, मान लो कि 500 करोड़ की ट्रेड होता है, तो 100 करोड़ अगर कोई खरीदना चाहता है तो कोई अपर सर्किट लग सकता है। कभी देखो रिलायंस के अंदर अपर सर्किट लगते हुए, ऐसा नहीं देखा जा सकता। तो यही मेन सिस्टम होता है। ठीक है। फिर सर एक चीज पूछना था, वो है पीईएल में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं नहीं नहीं, वो कंपनी का ये अच्छा, पूरा नाम है प्रीमियल एंटरप्राइज, ओके प्रीमा क्या, पता नहीं, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीईएल। ओके, वो ठीक है। मैं एंट्री करना चाहता था 1 डे के रेंज पे देखे 1 डे। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक बार डिटेल में पहले इसका वीकली देख लेता हूँ, ठीक है। वीकली बारे में बात करें, स्टॉक इज अप ट्रेंड, बहुत बढ़िया, मतलब फोकस मेनली ऊपर की डायरेक्शन पे ही है। फिर स्टॉक नीचे गिरा, फिर एक करेक्शन के ऊपर चला गया, फिर अभी स्टॉक यहाँ पर एक मोमेंटम कर रहा है। एंड अगर इसका मार्केट कैप के बारे में बताएं, 47 करोड़ की कंपनी है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर कंपनी बिजनेस करता है। ओके, मैं सिर्फ इसमें फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेड करना चाहता था। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। यहाँ पे एक रेंज है 2013 का, मतलब उसका प्राइस 2013, तो उस रेंज को लास्ट डे के पहले दिन उसने ब्रेक किया, तो मैं वहाँ पे एंट्री करने के लिए बैठा था। एक्चुअली मैंने एंट्री कर भी लिया था, हम्म फर्स्ट हाफ पे ऊपर भी गया, हम्म लेकिन लास्ट हाफ में उसने बहुत उसका प्रीवियस डे का जो लो है, हम्म लास्ट डे, वो उसने तोड़ दिया। हाँ, तो मैं बस अभी ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या मंडे को अगर ये फिर से अप ट्रेंड की तरफ जाए, हम्म तो क्या एंट्री कर ले? और मेरा टारगेट लेवल है 2375। पहली बात तो यही है कि मैं तुम इसको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा हिसाब से स्टॉक को भूल जाओ, कोई और स्टॉक देखो। अभी इसका क्या रीज़न है? पहला रीज़न कि ये स्टॉक ऊपर जा चुका था, फिर जब करेक्शन पे यहाँ पर आया था, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट एक्चुअली, यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो पहले की बात है। फिर जाके स्टॉक जब गिरा, ठीक है, स्टॉक ने जब गिरा तो यहाँ पर एक क्या है, दिस इज़ ए सपोर्ट लेवल, तो इसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए था। कौन सी जगह पे एंट्री लेना चाहिए था? वीकली पे जब इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर दिया, ये जो इंगल्फिंग देखे हो, तो इसके बाद ये वाला 2 रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था, ठीक है। एंड डेली के अगर शॉर्ट स्विंग के बारे में बताएं तो तब भी तुम्हें यहाँ पर 5% के आसपास प्रॉफिट होता। डेली की अगर बात करें तो यहाँ पर दिस इज अ बाइंग ट्रेंड लाइन, एंड बाइंग ट्रेंड लाइन के साथ ही मतलब उसके पास ही जाके स्टॉक ने उसी जगह से करेक्शन फेज में आया। रेड कैंडल। हाँ, हाँ तो एक प्रोबेबिलिटी ऐसा होने का चांसेस है कि दिस इज़ अ ट्रेंड, ये हो गया एक तरह की ट्रेंड, तो ट्रेंड के आसपास स्टॉक आ जाए, मतलब 1800 के आसपास आएगा, ठीक है, 1800 के स्टॉक आसपास आएगा, फिर जाके स्टॉक के ऊपर काम करना चाहिए। इनफैक्ट देखो स्ट्रैटेजी के मुताबिक यहाँ पर जो जोन है, मान लो कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये वाला एक जोन हो गया, ये वाला एक जोन हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 जोन है, तो इसके ऊपर यहाँ पर
मैंने जो टूल यहाँ पर बनाया, जो उसको इन्वेशन किया, तो यहाँ पर जब सिग्नल देगा तब काम करना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर टूल ने यहाँ पर किस तरह के मोमेंटम किया, देखो यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड किया, राइट, इसके बाद स्टॉक ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर उसने एक सिग्नल प्रोवाइड किया, इस जगह से ये स्टॉक सिग्नल ऊपर। मुझे तो नहीं है। हाँ नहीं, सिस्टम वैसा नहीं काम करता। अगर तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो तो वीकली में यहाँ पर सिग्नल कहाँ पे दिया, दिस इज द सिग्नल, देखा, हाँ। ये हो गया एक सिग्नल। तो सिग्नल यहाँ पर मिला, तो स्टॉक को थोड़ा करेक्शन पे आने देना चाहिए, 1800 के लेवल पे स्टॉक को आने देना चाहिए करेक्शन के लिए। स्टॉक जब 1800 के आसपास स्टॉक आएगा, वीकली में एक सिग्नल मिल गया, ठीक है, तो जब वीकली में सिग्नल मिल गया तब स्टॉक जब 1800 के लेवल पे आसपास स्टॉक आएगा, फिर नीचे से जब ऊपर उठने स्टार्ट करेगा एंड डेली पे जब दोबारा सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तभी यहाँ पर अगर काम करोगे 100% प्रॉफिट होगा एंड होने का चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर फोकस हटा के रखो, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जाके इसको फिर से देख सकते हो, स्टॉक नीचे गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा। फंडामेंटली तो मैंने इसको देखा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस मॉडल अच्छा है, लेकिन उतना मुझे इतना मतलब इस तरह की कंपनी के अंदर मैं ज़्यादातर काम नहीं करना चाहता, ठीक है। सर और एक बात, अगर कोई स्विंग ट्रेड में मैं एंट्री ले लूँ तो स्टॉप लॉस का 3 घंटे के हाँ टाइम डेफिनेटली, फ्रेम में हाँ स्टॉप लॉस। मेंटेन कर सकते हो डेफिनेटली, ये बहुत बढ़िया बात है कि तुमने डेली या फिर वीकली देखकर कोई स्टॉक के ऊपर तुमने एंट्री लिया, तो 3 घंटे के ऊपर जाके तुम अपना जो टारगेट है उसको तुम वहाँ पर मतलब एज सेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एज ए स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। और एक जो है वो जरा देखते दीजिए, वो HDFC लाइफ में, ठीक है, ACC, वो अभी HDFC लाइफ। HDFC लाइफ बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पर एंट्री लेने के लिए बैठा हूँ, पता नहीं कितना साल के बाद ले पाऊँगा, ठीक है। नहीं, वो एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि वो 200 के मूविंग एवरेज से रेड कैंडल देके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं शॉर्ट साइड पे एक फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ कुछ 1-2 दिन के लिए? तो नीचे से देखिए एक ट्रेड लाइन के सपोर्ट ले रहा हाँ है। यहाँ पर आई थिंक हमारा जो सिग्नल है ट्राइडेंट ने वो ऑलरेडी सिग्नल यहाँ पर, एक सेकंड, ट्राइडेंट का 3 घंटे के ऊपर चला जाए, नहीं फ़िलहाल तो नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक बाई सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टॉक ये वाला जो लेवल्स है इसको देखो, दिस इज द लेवल, ठीक है, 560, स्टॉक अगर 560 को ब्रेकआउट करे तब जाके शॉर्ट कर सकते हो, इससे पहले नहीं। लेकिन शॉर्ट करके मतलब क्लोज कर देना कुछ ही दिन के अंदर, होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा दिन, बिकॉज ये वाला जो कंपनी है फंडामेंटल बहुत अच्छा है। 620 बोलो। 522 অবধি তো টার্গেট রাখতে পারি। 522, শর্টে আর কি। 522, एक सेकंड, हाँ नहीं उतना नहीं, ईजिली यहाँ पर चला आएगा, देखो ये जो लेवल है 544, 45, ठीक है, इतना लेवल तक इजी टारगेट है, एकदम से इजी। एंड यहाँ पर जाकर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक यहाँ से मतलब अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, 560 को ब्रेकआउट करे तो 545 रुपीज़ में तुरंत आ जाएगा, हो सकता है 1 दिन के अंदर आ जाए, 2 दिन के अंदर आ जाए। तुरंत आने के बाद थोड़ा बहुत अगर नीचे थोड़ा बहुत आ जाए तो फिर जाके स्टॉक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके आगे चलना पड़ेगा, लॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, एक 2 चीज़ हमेशा याद रखो जब भी इंट्राडे करोगे, 2 चीज़, सटीक एंट्री लेने के बाद मान लो कि स्टॉक प्रॉफिट पे चला गया 2000, ठीक है, तो उस प्रॉफिट से अगर स्टॉक गिर के नीचे गिर के मतलब मान लो 100 प्रॉफिट में आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्लोज कर दो स्टॉक को, लेकिन लॉस में नहीं जाना है, लॉस हम कभी भी लॉस नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखो कि स्टॉक मार्केट में कभी भी अपना जो लॉस है ना उसको स्वीकार मत करो, मन से उसको कभी स्वीकार मत करो। मतलब मान लो तुमने 10 ट्रेड लिया, 10 नहीं 100 ट्रेड लिया, 100 में से सिर्फ 1 में तुम्हारा लॉस हो गया, तो उसको भी स्वीकार नहीं करना, उसको भी मन से मतलब लॉस इज़ लॉस, 1 रुपये भी हो तब भी वो लॉस है,
तो उसको सीखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर लॉसेस क्यों हुआ, कि फ्यूचर में जाके इस तरह के स्टॉक में मैं कभी ना काम करूँ, लॉस नहीं करूँ। चार्ट के स्ट्रक्चर क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो कभी लॉस को नहीं सीखना चाहिए। जैसे कुछ ही दिन के अंदर देखो, मैंने एक स्टॉक के ऊपर काम किया, मैंने ग्रुप में यहाँ पर, हेलो हेलो, हाँ, वो साउंड चला गया था आपका। ओके ठीक है सर। हाँ साउंड सुनाई दे रहा है क्लियर। हाँ। तो कुछ दिन पहले मैंने बीपीसीएल के ऊपर काम किया था। तो बीपीसीएल में हुआ क्या कि स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है, मैंने जिस दिन काम किया स्टॉक ऊपर, तुरंत ऊपर चला गया। यहाँ पर ही देख सकते हो, यहाँ से स्टॉक तुरंत ऊपर गया। मैंने इस जगह पे काम किया था, स्टॉक तुरंत ऊपर गया। फिर ऊपर से ही मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट में ही मैंने क्लोज़ किया, क्योंकि उस समय ही मुझे यहाँ पर पता चल गया था कि स्टॉक नीचे आ जाएगा। एंड मैंने प्रॉफिट रहते रहते इसको क्लोज़ कर दिया। आई थिंक 2.5% प्रॉफिट था, लेकिन मैंने क्लोज़ कर दिया। इसका रीज़न यही है कि मैं लॉस नहीं लेना चाहता। स्टॉक नीचे गिर जाए फिर जाकर मैं यहाँ पर काम करूँ, लेकिन मैं लॉस नहीं लूँगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ था, जिसके लिए मैं हम सबको कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी कोई स्टॉक में अगर प्रॉफिट करना स्टार्ट करे, फिर रिवर्स लेकर एकदम नीचे आ जाए, तब भी जाके लॉस नहीं होने देना है, प्रॉफिट में क्लोज करना है। चाहे डीमैट अकाउंट का चार्जेस रहकर ही क्लोज कर क्यों ना करता हूँ, कि डीमैट अकाउंट का चार्जेस 20 रुपये है या 50 रुपये है, उसको रख कर क्लोज कर दो, लेकिन प्रॉफिट में ही क्लोज करो। तो ठीक है, और कोई स्टॉक्स? नहीं, और कोई स्टॉक्स तो नहीं है, और बाकी तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम कर। हाँ हाँ एकदम एकदम। अच्छा ये वाला स्टॉक देखो, यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज़ तुम्हें आई थिंक नहीं पता, तो बाकी लोगों को पता है कि जब स्टॉक एक बहुत बढ़िया गैप हंसी देता बोलছি। है। हाँ हेलो, हाँ हसीवर, एक सेकंड रुको ज़रा। तो आ, देखो यहाँ पर जब इतना बढ़िया एक गैप दिया, इसको समझो, इतना बढ़िया गैप देने के बाद मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलर बहुत एग्रेसिव हो जाता है किस बेचने के लिए, ठीक है। तो ये जो करेक्शन आया ना, करेक्शन में सेल कर देना चाहिए स्टॉक को, फिर स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट कोई भी जगह पे देखोगे कि मान लो कि एक अप ट्रेंड स्टॉक में अचानक देखा गिर गया, ठीक है, तो फिर जाके बाहर निकलने के लिए कोशिश करो स्टॉक में, वहाँ पर क्या करना चाहिए, सेल आउट करके बाहर निकाल दो, एक करेक्शन दे तब जाके। इस तरह के स्टॉक में कभी काम नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो हसीबुर। হ্যাঁ স্যার বলছি যে ওই অপশন ট্রেডিং এ মানে নিফটি ব্যাংক বা নিফটি ফিফটিতে গ্যাপ ডাউন কিংবা গ্যাপ আপে যেটা হয় ওটার ব্যাপারে একটু বলবেন। डेफिनेटली आई मीन एकदम, गैप आउट गैप अप क्या होता है एंड गैप डाउन क्या होता है, इसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले निफ्टी 50 में जो गैप अप होता है एंड गैप जो डाउन होता है ना, इसका एक रीज़न होता है कि वर्ल्ड मार्केट के साथ मार्केट मतलब निफ्टी का मतलब NSE का एक बहुत बढ़िया कोरिलेशन रहता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर यहाँ पर मान लो कि तुमने एक सेकंड, मैं तुम्हें यहाँ पर मार्केट ओपन करके दिखाता हूँ, जो भी स्टॉक्स था उसको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ग्लोबल मार्केट, ओके, सो दिस इज़ अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो US मार्केट, ठीक है, जहाँ पे नैस्डैक, जहाँ पे यूरोपियन मार्केट जैसे FTSE, ठीक है, डैक्स, एंड एशियन मार्केट जैसे जेक्स निफ्टी, ठीक है, निक्की 225। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ना, दिस इज ए ग्लोबल मार्केट इंडेक्स, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का जो इंडेक्स है, तो अगर ये सब डाउन हो मैक्सिमम टाइम, अगर FTSE अगर डाउन हो तो FTSE को फॉलो करके बाकी सब भी डाउन होता है। एंड SGX सिंगापुर, SGX अगर ये भी डाउन हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज डाउन पॉइंट, ठीक है, तो अगर ये डाउन हो तो प्रोबेबिलिटी होगा कि नेक्स्ट डे गैप डाउन होके ही खुलेगा। अगर ये सब आप हो तो प्रोबेबिलिटी होगा नेक्स्ट डे गैप आप होके ही खुलेगा, ठीक है, ऐसा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके वजह से गैप अप होता है, इसके वजह से ही गैप डाउन होता है मैक्सिमम टाइम। एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ऑप्शन में एक चीज़ कभी नोटिस किया है तुमने कि मान लो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे मार्केट टोटली पॉजिटिव, ठीक है, बृहस्पति मतलब बाकी दिन मार्केट पॉजिटिव, एंड बृहस्पतिवार को टोटली मार्केट पॉजिटिव रहकर सीधा गिर गया, एकदम एकदम पूरा पूरा एकदम सीधा क्रैश हो गया। जैसा अगर मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी यहाँ पर एक चीज़ समझो
निफ्टी यहाँ पर बहुत इसको ये वाला जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी पावरफुल टॉपिक, मतलब कभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं किसी को। तो देखो इसको देखो यहाँ पर, ओके यहाँ पर देखो इस जगह पे, यहाँ पर देखो बृहस्पतिवार, ये था बृहस्पतिवार, ठीक है, कौन था, ये था बृहस्पतिवार, ये देखो ये हो गया बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार क्या दिख रहा है कि एकदम ये हो गया पहला दिन, इसके बाद गैप आप में ओपन हुआ, ठीक है, एंड ऑप्शन में जो कॉल था उसका प्रीमियम बढ़ चुका है, ऊपर जा रहा है, एंड आखिर में जाके 1 बजे के बाद जाके मार्केट सीधा क्रैश, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक के वजह से यहाँ पर ऐसा होता है, एंड ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, उसका वैल्यूएशन डिक्रीज करने के लिए इसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वैल्यू डिक्रीज, यानी टाइम डीके, ठीक है, इसको टाइम डीके कहा जाता है एक्चुअली। तो टाइम डीके कराता है, टाइम डीके की वजह से इसका वैल्यू एकदम जीरो करवा देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ गैप अप एंड गैप डाउन देखकर ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो टूल यहाँ पर इनोवेशन किया, इस टूल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल कि 10 में से 9 बार तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेड दिलाएगा ये वाला टूल, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊँ, देखो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मान लो कि 1 घंटे के ऊपर मैं एनालिसिस, 1 घंटा नहीं छोड़ो, मैं 15 मिनट, जैसे इंट्राडे जो लोग करते हैं 15 मिनट में ही करते हैं, राइट, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट में ही सब चलता है, तो 15 मिनट में मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंट्राडे करना है तो 2 टूल, मतलब 2 सिस्टम को यहाँ पर 2 इंडिकेटर, एक ट्राइडेंट एंड एक MACD, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर लगाना है, जैसे MACD, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर ये हो गया MACD, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक टाइम फ्रेम उठा लेते हैं, मतलब कोई भी जगह पे जाकर हम एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम में हम एनालिसिस करेंगे, हम कोई पास्ट की हिस्ट्री में जाके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो ओके, मान लो कि ये वाला फेज़ में हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, ये वाला फेज़ में। यहाँ पर 2 तरह की फेज़ है, ठीक है, सिंपल सा बात है। एक फेज़ अपसाइड, सॉरी डाउन साइड एंड अपसाइड, 2 तरह की फेज़ यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो इन फेज़ों में कैसे काम करना है, सिंपल सा बात है। अगर MACD ऊपर है, ऊपर यानी 80 के ऊपर, ठीक है, 80 के ऊपर अगर MACD यहाँ पर है, एंड MACD अगर मान लो कि 80 का नीचे है, ठीक है, 80 का नीचे है एंड 80 के ऊपर है, मतलब ये 2 जगह अगर तुम MACD को देखोगे, इन दोनों जगह पे ही अगर MACD क्रॉस करे एंड उसके साथ साथ जो ट्राइडेंट है, अगर ट्राइडेंट तुम्हें बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करे, तभी जाके यहाँ पर काम करना चाहिए। अगर दोनों ना मिले, मतलब एक साथ मान लो कि दोनों को मिल नहीं रहा है, तो काम नहीं करना है। जैसे कि देखो इस जगह पे हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये वाला फेस को, तो यहाँ पर MACD ने क्रॉस किया, राइट, एंड वो 80 के नीचे था, सुनाई दे रहा है एवरीवन? हेलो, हाँ सर। ओके। तो यहाँ पर MACD 80 का नीचे था, राइट, यहाँ पर MACD 80 का नीचे था, एंड अगर मैं ट्राइडेंट के बारे में बताऊँ तो अभी ट्राइडेंट को सिग्नल देना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइडेंट यहाँ पर क्या दिया, देखो सिग्नल प्रोवाइड किया इसके बाद, एंड इसके बाद एक स्टॉक ऊपर, ठीक है, एकदम सीधा ऊपर। फिर जाके MACD यहाँ पर इस जगह पे अगर तुम देखोगे, इस जगह पे 80 पे यहाँ पर फिर से क्रॉस हुआ नीचे का साइड पे, राइट, ओके। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ट्राइडेंट के बारे में बताऊँ, क्या ट्राइडेंट ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया था? सेल सिग्नल नहीं दिया, यानी नहीं। तुमने यहाँ पर मतलब तुम्हारा जो गलत ट्रेड था वो यहाँ से कट गया, निकल गया, ठीक है।
फिर जाके स्टॉक इसी जगह पे फिर से दोबारा सेल, यहाँ पर स्टॉक गिरना स्टार्ट किया इस जगह पे एमएसीडी ने, राइट। फिर से अगर इस लेवल हाँ पे देखें तो एमएसीडी अगर यहाँ पर देखोगे, एमएसीडी ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया एंड इसके बाद हाँ स्टॉक नीचे, उसी दिन स्टॉक नीचे क्लोज किया। इंट्राडे में हमेशा एक दिन के अंदर ही क्लोज कर देना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं 15 मिनट के एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्चुअली 15 मिनट में नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर मैं कोई टेक्निकल मतलब प्राइस एक्शन सिस्टम वगैरह प्राइस इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये टोटली एक स्ट्रैटेजी बेस है एंड जो ट्राइडेंट यहाँ पर जिसके बनाया मैंने, ट्राइडेंट को यहाँ पर खुद मैंने इसको बनाया लगभग 1-1.5 साल इसको सिर्फ रिसर्च करने में लगा एंड लास्ट 6 महीने से ऑलमोस्ट यहाँ पर इसके ऊपर से कोडिंग चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक सेकंड, तो ट्राइडेंट मतलब उसका जो सिस्टम है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ट्राइडेंट के साथ कोई इंडिकेटर का तुम यहाँ पर कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, एकदम अलग है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये जो तुम यहाँ पर लाइन देखोगे, मान लो कि यहाँ पर तुम जो लाइन देख रहे हो, जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये कोई मूविंग एवरेज का लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रेड ग्रीन एंड ब्लू देख रहे हो दिस इज अ मूविंग एवरेज लाइन। एंड यहाँ पर तुम जो बाई सिग्नल देख रहे हो एंड सेल सिग्नल देख रहे हो, इसको जो कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक का हाई लो क्लोज ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सपोर्ट होता है, जो रेसिस्टेंट होता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एंड वॉल्यूम बेस्ड सिस्टम के ऊपर यहाँ पर सिस्टम करके इसको बनाया गया है कि इस जगह पर इस तरह के पोजीशन अगर बनाए तभी जाके वो सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें तो टेक्निकल जानना ही पड़ेगा, इसके बाद जाके हम काम करते हैं। ओके चल छोड़ो। इसके बाद फिर जाके हम यहाँ पर अगर एक ट्रेंड बनाए, मान लो कि ये वाला एक ट्रेंड बनाए, तो ट्रेंड के बेसिस पे हमें इस जगह पे सेल करना चाहिए, इस जगह पे सेल करना चाहिए, या फिर इस जगह पे हमें इसको सेल करना चाहिए, इस तरह के जगह पे सेल करना चाहिए, राइट। तो अगर देखें कि यहाँ पर एमएसीडी ने इस जगह पे, देखो इस जगह पे क्रॉसओवर किया एंड हमें यहाँ पर पता है कि स्टॉक अभी नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पर तो बाई साइड पे काम ही नहीं करेंगे। एंड एमएसीडी फिर भी नीचे है तो भी हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, एमएसीडी नीचे, एमएसीडी ऊपर आने देते हैं, फिर जाके देखेंगे। तो इस जगह पे यहाँ पर एमएसीडी ने क्रॉस किया एंड यहाँ पर स्टॉक इज अ डाउन ट्रेंड शिफ्ट चल रहा है, एमएसीडी क्रॉस किया। एंड अगर मैं ट्राइडेंट के बारे में बताऊँ तो अभी यहाँ पर देखना है कि ट्राइडेंट ने कोई सिग्नल दिया है या नहीं। तो तुम खुद देखो, ट्राइडेंट ने सिग्नल दे दिया एंड एमएसीडी ने भी यहाँ पर काम किया, फिर स्टॉक फिर से गिर गया एकदम सीधा नीचे, ठीक है। फिर जब इतना बड़ा गैप होता है तो क्या सीखा, गैप जब होता है गैप फिल करने के लिए ऊपर जाता है डेफिनेटली। एंड एमएसीडी नीचे से यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया, फिर से क्रॉसओवर किया, हाँ क्रॉस ओवर किया। लेकिन स्टॉक यहाँ पर क्या क्या देखो, यहाँ पर ऑलरेडी उसने पहले ही बाई सिग्नल दे दिया क्रॉस होने से पहले ही, और फिर से क्रॉस किया, तो दोनों मिला के स्टॉक बाई करो, फिर स्टॉक ऊपर, ठीक है। फिर मतलब बाकी सभी जगह अगर तुम ऐसा इस तरीके से इसको अगर थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो हर जगह पे यही सिस्टम है। मैं इसको बाद में इंट्रोडक्शन मतलब सभी को मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन ये जो गैप अप एंड गैप डाउन देख रहे हो आसिफुर, तो गैप अप एंड गैप डाउन एक्चुअली मार्केट का कंडीशन के बेसिस पे गैप अप एंड गैप डाउन होता है कि वर्ल्ड मार्केट अगर डाउन चला जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके वजह से एजीएक्स डाउन चला जाता है। मतलब सिस्टम कैसे काम करता है देखो, तुमने यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स जैसे मनी कंट्रोल के ऊपर आओगे, फिर मार्केट के ऊपर जाओगे, फिर ग्लोबल मार्केट के ऊपर जाओ, तो यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर दिखाएगा यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नैस्डैक, एफटीएसई, डैक्स, निक्की 225, ठीक है, एंड एसजीएक्स निफ्टी। मतलब क्या होता है कि नैस्डैक अगर डाउन चला जाए, ठीक है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं डैक्स भी चला जाता है डाउन, फिर निक्की 225 भी डाउन चला जाता है, एंड इसको देखकर फिर एसजीएक्स डाउन चला जाता है। एंड एसजीएक्स सिंगापुर में अगर डाउन चलाएगा तो इंडिया में भी वही होता है, वो भी फिर से डाउन चला जाता है। तो इसके वजह से बहुत बढ़िया गैप होता है एंड फिर गैप अप होता है, ठीक। अगर ऊपर से तो गैप अप एंड नीचे से तो गैप डाउन। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं कहूँगा कि ट्रेंड के डायरेक्शन पे अगर काम करें सभी लोग तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ ट्रेंड का डायरेक्शन पे। इनफैक्ट हर किसी का स्ट्रैटेजी सिस्टम हर किसी का अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, इंट्राडे मैं बहुत काम करता हूँ, मतलब करता ही नहीं, मतलब बहुत काम करता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं कभी लार्ज कैप कंपनी में काम ही नहीं करता। अपने बारे में अगर मैं बताऊँ, लार्ज कैप कंपनी में कभी नहीं काम करता। अगर लास्ट कुछ दिनों में मैंने जितना भी कंपनी यहाँ पर बाई किया, इसके बारे में अगर मैं तुम लोगों के यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊँ
तो तुम लोगों को सभी को यहाँ पर पता चलेगा कि वो सभी कंपनी स्मॉल कैप था। जैसे देखो ये वाला जो कंपनियाँ है, ठीक है, कैमलिन फाइनेंस साइंस, तो इसको अभी 15 मिनट का चार्ट देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एक्चुअली वीकली में हम इसको देखेंगे। तो वीकली में अगर देखा जाए तो देखो क्या है कि स्टॉक साइडवेज फिर डाउन, फिर ये जो इसका जो ये क्या था, इसका रेसिस्टेंट था, फिर बाद में इसी रेसिस्टेंट के ऊपर स्टॉक कहीं ना कहीं आके यहाँ पर सपोर्ट बनाया, राइट। सपोर्ट बनाने के बाद इसी जगह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली बात ये है कि इसी जगह से ही जाएगा, इसका कोई गारंटी है क्या किसी किसी के पास? कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस टूल को इनोवेशन किया कि ये टूल एक ऐसा टूल है जो तुम्हें एग्जैक्टली बताएगा तुम जहाँ से खरीदना चाहते हो उसी जगह से स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं। तुम जहाँ से खरीदना चाहते हो पहले तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जगह, फिर उसी जगह से ऊपर जाएगा या नहीं ये टूल तुम्हें बताएगा। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया ये वाला जगह, क्यों आइडेंटिफाई किया, अगर मैं डेली पे चले जाऊँ तो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, इस जगह पे ना एक पैटर्न बना, देखो यहाँ पर एक पैटर्न बना जो कि कौन सी पैटर्न है इसका? इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। वेरी गुड, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है, राइट। देखो पैटर्न ब्रेकआउट कर चुका है ना, हाँ पैटर्न ब्रेकआउट कर चुका है डेली पे। एंड डेली पे कहाँ पे जाके पैटर्न बनाया, जो कि वीकली का जो सपोर्ट है उसी जगह पे, ठीक है। एंड इसी जगह पे पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद अगर जो टूल है, टूल ने मुझे अगर मुझे बताया कि स्टॉक इस जगह से ऊपर जाएगा तो मुझे खरीदना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं, खरीदना तो चाहिए। हाँ डेफिनेटली। तो इसीलिए इस स्टॉक के अंदर मेरा एंट्री था। कौन सी जगह पे, ये देखो सिंपल सा बात है। मैंने हमेशा सभी को जो चीज़ सिखा था वही चीज़ मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ। ये हो गया मेरा रेसिस्टेंट जहाँ पे पैटर्न ब्रेकआउट, फिर रेड कैंडल के बाद स्टॉक नीचे गिर के, मतलब थोड़ा करेक्शन, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद करेक्शन, दिस इज अ करेक्शन फेज। लोग यहाँ पर सोचते हैं कि स्टॉक गिर जाएगा, नहीं, दिस इज अ करेक्शन फेज। इसी करेक्शन पे अगर मैं यहाँ पर फिर से ट्राइडेंट को देखूँ तो उसी जगह पे फिर से उसने यहाँ पर करेक्शन के बाद यहाँ पर उसने बाई सिग्नल दिया, ये देखो जैसे बाई सिग्नल, ठीक है। तो बाई सिग्नल की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने यहाँ पर नॉर्मली मुझे पता ही है तो मैंने नॉर्मली यहाँ पर ख़रीद लिया। एंड इसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अभी कितना % प्रॉफिट चला, मतलब आई थिंक 3 to 5 डेज पहले मैंने इसको ख़रीदा था। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 5% के आसपास यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 6% के आसपास मुझे एक प्रॉफिट चल रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। तो इसी तरह मैंने और भी बहुत सारे कंपनी हैं, अगर इसका मैं फंडामेंटली देखो देखो दिस इज़ द फंडामेंटल। तो फंडामेंटली अगर मैं देखूँ स्टॉक का जो पी है, तो स्टॉक का पी बहुत हाई है, लेकिन इंडस्ट्री पी से बहुत यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन मतलब इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा हाई है। आरओसी उतना अच्छा नहीं है, एसेट उतना अच्छा नहीं है, कुछ भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एंट्री लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, दिस इज़ द रीज़न। इसका और एक अगर मैं एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को दूँ तो समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक 2020 के बाद से मतलब 40 रुपये से 200 रुपये जा सकता है, तो डेफिनेटली 200 रुपये से 150 रुपये में आ सकता है या फिर 100 रुपये में आ सकता है, लेकिन फिर से 40 रुपये में नहीं आएगा वो, ठीक है। इतना बड़ा मूव किया तो उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट, दिस इज अ रिट्रेसमेंट, राइट, एकदम वेरी गुड। दिस इज अ रिट्रेसमेंट वाला फेज, दिस इज नॉट ए अगेन द डाउन फेज, दिस इज अ रिट्रेसमेंट फेज। तो इसीलिए यहाँ पर काम किया जा सकता है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके फंडामेंटल को भूल जाते हैं, और यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपनी के बारे में यहाँ पर दिखाऊँ तो कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी है, तो 2000 करोड़ की कंपनी का 4000 करोड़ चला जाए तो मेरा जो पैसा है मतलब 1 लाख मान लो कि यहाँ पर 2 लाख हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल सा फंडा है, कोई मतलब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल से रिलैक्स में मतलब सोते सोते पैसा बन जाएगा। तो ये हो गया एक तरह की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे वीकली को देखकर वीकली का जो रेसिस्टेंट है उसी रेसिस्टेंट को मार्क आउट करना पड़ेगा। फिर उसी रेसिस्टेंट के ऊपर जब स्टॉक करेक्शन फेज में आए तब जाके, जब बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करे तब जाके फिर से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इससे बहुत आसानी से प्रॉफिट मिलता है।
एंड इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके ऑलमोस्ट 7 ट्रेड यहाँ पर लाइव 7 ट्रेड लिया गया एंड 7 में से आउट ऑफ 7 6 प्रॉफिट टोटली। एक स्टॉक में 3 रुपये लॉस चल रहा है, ठीक है, तो वो कोई लॉस नहीं है, उसमें भी प्रॉफिट ही होगा कुछ दिन के बाद। तो यही बात है। किसी के पास और कोई स्टॉक से या फिर कोई क्वेश्चन से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हाँ স্যার, আমার কাছে আছে একটা, ক্লিন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। एक सेकंड, व्हाट इज योर नेम? ক্লিন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্যার। ओ अच्छा, हसीबुर, ओके, सो ओके। স্যার CLE, हाँ हाँ एन, CLEAN, हाँ हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो आई थिंक देखते इसका सिस्टम क्या। अरे वाह बहुत बढ़िया। ফান্ডামেন্টালটাও খুব সুন্দর। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली, केमिकल सेक्टर ऊपर जाएगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ अभी फ़िलहाल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर 1 साल के अंदर बहुत ग्रो करेगा। 1 साल के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 50%, सेक्टर ही 50% ग्रो करेगा, मुझे ऐसा मानना है। तो कंपनी तो डेफिनेटली 100% भी कर सकता है अगर अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल पे बाई करे कोई। तो केमिकल कंपनी है, ग्रो 100% करेगा, कोई लॉस होने का चांसेस ही नहीं है। एंड अगर वीकली में मैं ट्राइडेंट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर कोई ट्राइडेंट का कोई सिग्नल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिस न्यू स्टॉक्स। लेकिन इस जगह पर ऑलरेडी ट्राइडेंट ने एक सिग्नल दिया, तो इस स्टॉक के अंदर मैं डेफिनेटली एंटर करना चाहूँगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं। स्टॉक को थोड़ा करेक्शन पे आना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर स्टॉक आ जाए 1700 के लेवल पे, तो जाके मैं इस स्टॉक के अंदर एंट्री डेफिनेटली करना चाहूँगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि 1700 पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसी जगह से स्टॉक ऊपर चला जाए सीधा, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न बना है, तो पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे यहाँ पर एक पैटर्न बनाया। हाँ सर, इन्वेस्टर, हाँ, इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड ऑलरेडी पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि उतना भी नीचे आएगा। हो सकता है 1750 रुपये में आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन दे, उतना ज़्यादा करेक्शन पे नहीं आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं एंट्री करूँगा ही नहीं। इसका मेन जो कारण है वो मार्केट कैप है, 18,000 मार्केट कैप। ज़्यादातर मैं जिस कंपनी के अंदर एंट्री करता हूँ वो 1,000 से लेकर 10,000 के 20 वाला कंपनी होता है, ठीक है। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा खुद का सिस्टम है। देखो, मैं तुम सभी लोगों को मैंने जो सिखाया वो अलग, मतलब वो एकदम जेन्युइन चीज़ है कि किस तरह के कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। हर किसी को मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के दिया हूँ, लेकिन मेरा खुद का भी एक अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे हसीबुर एक तरह की कंपनी के ऊपर काम करता है, रूपम एक तरह की कंपनी के ऊपर काम करता है, बाकी लोग भी अलग अलग तरह की कंपनी के ऊपर काम करता है, ठीक है। मतलब हर कोई एक चीज़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे सिर्फ सभी चीज़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं बना सकता, अलग अलग चीज़ होता है। जैसे मेरा जो पेशेंस है, मैं खुद जब मार्केट के ऊपर मैं खुद काम करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के ऊपर काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच वाला जो कंपनी, इसके नीचे भी नहीं। मतलब मान लो कि 30 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, इस तरह कंपनी आई जस्ट हेट, उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। जितना भी अच्छा हो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। 1,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच वाला जो कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर भी मेरा स्पेशल सिस्टम है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। वो भी मैं सभी लोगों को आज दिखाई देता हूँ कि मैं जब खुद काम करता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। मान लो कि 1,000 करोड़ की कंपनियाँ हैं एंड वो कंपनी इस तरह के रेंज बाउंड कर रहा है, ठीक है, इस तरह के रेंज बाउंड कर रहे हैं। मैं काम नहीं करता, अगर इस तरह के रेंज बाउंड देखो, मैं काम नहीं करता। मैं कब काम करता हूँ? अपसाइड मोमेंटम आया, फिर डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर जब इस तरह के मोमेंट होता है तो इसी जगह पे मैं एंटर करता हूँ, ये वाला एरिया पे सिर्फ एंटर करता हूँ। सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप, एक सिस्टम। इसी जगह पे मैं देखता हूँ पैटर्न, इसी जगह पे मैं देखता हूँ बाइंग ट्रेंड लाइन, इसी जगह पे मैं देखता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, इसी जगह पे मैं देखता हूँ ट्राइडेंट क्या बोलता है। सिर्फ यही एक सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ एंड ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट का चांस, मतलब जो मैं प्रॉफिट करता हूँ ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। इसी एक सिस्टम, ओनली फॉर द एक सिस्टम बेस, और कोई सिस्टम मेरा है ही नहीं। अगर मैं चाहूँ मैं
मैं सभी लोगों को बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाई, इस जगह पे काम किया जा सकता है, इस जगह पे काम, मतलब ये सब मैंने पहले करके आ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जो बड़े वॉल्यूम होता है ना, बड़े वॉल्यूम जैसे 50%, 100%, 200% का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का जो मूव होता है, वो सब मूव इस तरह की जगह पे नहीं मिलता। एंड मैं बहुत काम पे बिजी रहता हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए इतना 10% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट इतना मुझे मतलब पसंद नहीं है। तो मैं बहुत रिसर्च करके, हो सकता है 3 महीने के बाद जाके एंट्री लो, लेकिन जब एंट्री लेता हूँ 50% मिनिमम मतलब 25% मिनिमम, कोई भी स्टॉक के ऊपर मैं काम करूँ तो मिनिमम 25% नीचे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही सिस्टम के ऊपर काम करें। जैसे मैंने ट्राइडेंट बनाया, तो ट्राइडेंट के बेसिस पे यहाँ पर बाकी और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर जब स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट पे भी यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर सिग्नल मिलेगा, तुम यहाँ पर अगर काम करोगे तो इस जगह पे भी इतना बड़ा एक मूव तुम्हें यहाँ पर भी मिल जाएगा। ट्राइडेंट बहुत एक पावरफुल सेटअप है जो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। जो ट्राइडेंट है, इसको मूविंग एवरेज एंड इसको बहुत सारे कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिलहाल के लिए मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सितंबर की 15 तारीख के आसपास, आई थिंक, मतलब हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं कह सकता। मैं सभी को ट्राइडेंट मैं शेयर कर दूंगा। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उनका जो नाम है, जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्टॉक टेक्निक लिखा है, स्टॉक/टेक्निक, तो सभी का जो यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू का जो नेम है ना, वो नेम मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं पर्सनली इनवाइट करूँगा सभी को, ठीक है। तो किसी के पास और कोई स्टॉक्स बताओ मुझे। सर, अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना % अपना कैपिटल का एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना 10% ओनली चाहिए? फॉर, अच्छा, पूरा कैपिटल नहीं देना है। 10%, जस्ट ओनली फॉर 10%, मतलब मैक्सिमम 10%, ठीक है। देखो एक्चुअली ये वाला चीज़ हर लोगों के लिए अलग अलग बातें हैं। मेरा जो कैपिटल है वो 10 के आसपास है, ठीक है। तो मैं जस्ट 10% से काम चलाता हूँ। बहुत सारे लोग जिसका इसी ग्रुप में, तुम्हारे साथ, तुम जो ग्रुप में यहाँ पर हो, इसी ग्रुप में बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए है, तो वो लोग भी 10%, उनका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और किसी के पास सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये भी है, इसी ग्रुप में, ग्रुप के अंदर ऐसा लोग हैं, तो उनका सिस्टम अलग है। उनके लिए, उनको मैं यही कहूँगा कि स्टॉक इतना डीपली रिसर्च करके, मैंने जो स्ट्रैटेजी सिखाया उन लोगों को, इतना डीपली रिसर्च करो कि 10 नहीं, सिर्फ 2 स्टॉक 3 स्टॉक के ऊपर काम करो, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो कम अगर पैसा है तो उसके लिए एक तरह के स्टॉक के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे स्मॉल कैप, जैसे हसीपुर, उसके पास बहुत कम पैसा था, आई थिंक 5,000 रुपीज़ था हसीपुर के पास, तो आज 48 या फिर 50,000 ऑलमोस्ट है 4-5 महीने के अंदर। तो हसीपुर सिर्फ स्मॉल कैप के ऊपर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप। मैंने अभी तक नहीं देखा वो कोई लार्ज कैप के ऊपर काम करता है, सिर्फ स्मॉल कैप के ऊपर काम करता है। एंड और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ लार्ज कैप के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, बहुत कम है पैसा, तो तुम्हें चूज़ करना चाहिए स्मॉल कैप। एंड स्मॉल कैप चूज़ करके बहुत ही डीपली एनालिसिस करके उसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए, तो प्रॉफिट होगा मिनिमम 40-50%, मिनिमम, मतलब अगर थोड़ा दिन होल्ड करो, 3-4 महीने होल्ड करो, मिनिमम 40-50% होगा प्रॉफिट। एंड तुम्हारे पास अगर 1 लाख के ऊपर पैसा है, तब भी तुम स्मॉल कैप के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन अगर 1 करोड़ के आसपास अगर तुम्हारे पास पैसा है, तो तब जाके तुम यहाँ पर मिड कैप सेक्शन के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से डिवाइडेड करना पड़ेगा, हर किसी के लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पर है। सर, एक्चुअली मैं कुछ ফান্ড এরকম অপশন। তুমি বাংলায় বলো, অসুবিধা নেই, আমি হিন্দিতে বলছি। তার কারণ হচ্ছে এখানে অনেকেই হিন্দিতে কথা বলে, তো কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব অসুবিধা হচ্ছিল। হ্যাঁ মানে আমার যেটা ক্যাপিটাল আছে তার কিছুটা অংশ, ধরুন 1.5 লাখ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট অপশনের জন্য, হুম হুম অপশন সেল করার জন্য। হুম হুম আর আরেকটা যে ক্যাপিটালটা আমি রেডি করেছি, ওটা আমি কিছুদিন আগে আমি যেটা জিজ্ঞাসা করলাম, অ্যাঞ্জেল ওয়ানে অ্যাকাউন্ট করবো, হুম ওটাতে আমি রেখে দিয়েছি। ওটা জাস্ট হয় সুইং ট্রেড, নাহলে ইনভেস্টমেন্টের জন্য। হুম তো এরকম করে আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তো এটা কি ঠিক আছে, মানে রেশিওটা? परफेक्ट। তুমি যেটা কাজ করেছো, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे परफेक्ट है। बिकॉज 2 तरह की डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक सिर्फ इंट्राडे वाला डीमैट अकाउंट, और एक होता है सिर्फ होल्डिंग वाला डीमैट अकाउंट। 2 अलग ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर कोई पागल इंसान को, मान लो कि एक हथियार पकड़ा दिया जाए, एक वेपन दिया जाए, AK-47 मान लो, तो वो क्या करेगा? सभी को एकदम फिनिश कर देगा, राइट। तो उसी तरह से इंट्राडे में जब लॉस होता है,
जिस दिन लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, उस दिन अगर होल्डिंग भी तुम्हारे पास रहेगा ना, उसको भी खराब कर दोगे तुम क्या, कोई भी 90% लोग खराब कर देता है, ये सिस्टम ही ऐसा है। इसीलिए होल्डिंग का डीमैट होना चाहिए। हेलो। तो इसीलिए होल्डिंग का जो डीमैट अकाउंट है वो अलग होना चाहिए, एंड इंट्राडे का डीमैट अकाउंट अलग, टोटली अलग होना चाहिए। मिनिमम 2 डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। मतलब मैंने तो खुद 4 डीमैट अकाउंट मेंटेन करता हूँ, लेकिन मिनिमम 2 डीमैट अकाउंट मेंटेन करना ही चाहिए। मतलब जो भी मेंबर्स है मिनिमम करना चाहिए। इंट्राडे वाला एक डीमैट, एंड स्विंग हो जाए, इन्वेस्ट हो जाए दूसरा डीमैट। मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को आप स्टॉक्स या फिर एंजल के ऊपर खोले स्विंग वगैरह करने के लिए, स्विंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप स्टॉक या फिर एंजल। और फिलहाल एंजल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरा खुद के भी एंजल के ऊपर मेरा अकाउंट है, एंड एंजल के ऊपर मैं बहुत सारे स्टॉक के ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। एंजल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर फैसिलिटी, मतलब अपग्रेड कर चुका है एक्चुअली एंजल। कुछ ही दिन के अंदर, 1-2 महीने के अंदर एंजल बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर चुका है। तो एंजल के ऊपर अकाउंट कर सकते हो कोई भी लोग। ठीक है सर। ओके, तो विनय, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर पूछ सकते हो। एक सेकेंड। ओके, विनय ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किया। हाउ टू फाइंड न्यू स्टॉक्स, तो मैं एक एक करके आंसर देता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड न्यू स्टॉक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, न्यू स्टॉक्स तुम्हें किस तरीके से सर्च करना है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, कि न्यू स्टॉक्स को मुझे किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका 2 आंसर है, ठीक है। 2 आंसर है, सिंपल सा बात, 2 आंसर है। नंबर 1 आंसर, सीधा मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चला जाता हूँ। दिस इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखो, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर मार्केट वाला जो सेक्शन है, मार्केट सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ। देखो, दिस इज अ मार्केट सेक्शन। मार्केट सेक्शन के ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर इक्विटी वाला दूसरा सेक्शन आता है, इसके ऊपर चला जाता हूँ। फिर इक्विटी मार्केट वॉच के ऊपर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली एनएससी के ऊपर भी मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे स्टॉक इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आई लाइक बॉम्बे स्टॉक। तो इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, इक्विटी इंडेक्स एंड S&P BSE इंडेक्स, बेसिस सेंसेक्स। सो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ S&P BSE सेंसेक्स, तो एक चीज़ सबको नज़र आएगा। देखो, एक सेकंड, थोड़ा लोडिंग होना दो, ठीक है। ओके, क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें वैरायटी इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, वैरायटी ऑफ इंडेक्स, जैसे सेंसेक्स, जैसे देखो लार्ज कैप, ठीक है, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सब नॉर्मली वहाँ पर भी एनएससी के अंदर भी है, लेकिन बीएससी के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मिलते हैं, जैसे पावर सेक्टर, बीएससी पावर, ठीक है, ऑयल एंड गैस, ठीक है। जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पावर सेक्टर बहुत ग्रो करेगा, राइट, तो मुझे पावर सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पहले सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए। मान लो कि हाउ टू फाइंड ए गुड स्टॉक्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले काम यही है, आइडेंटिफाई द सेक्टर। पहले सेक्टर को एनालिसिस करो। तो तुमने यहाँ पर पावर सेक्टर, तुम्हें लगता है पावर सेक्टर ऊपर जा सकते हैं, गवर्नमेंट में यहाँ पर बोल दे पावर सेक्टर ऊपर जा सकते हैं, हर कोई पावर सेक्टर के ऊपर यहाँ पर काम करे। तो ये हो गए सारे पावर सेक्टर का कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सारे पावर सेक्टर, ठीक है। तो इतना सारे पावर सेक्टर को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, सभी को एनालिसिस करने के तुम्हें फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी अच्छा है। यहाँ पर 2 तरह की काम होता है। एक कंपनी जो टाटा पावर है, मान लो, बहुत अच्छा है, डेफिनेटली कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन एंट्री लेने का पोजीशन जा चुका है। लेकिन दूसरे जगह पे तुमने एक कंपनी देखा, वो कंपनी मार्केट कैप छोटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, और टेक्निकली भी अच्छा है, यानी सेक्टर भी ऊपर जा सकता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए। ये हो गया सिंपल सा एक मेथड, जिसके सिस्टम में तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले सेक्टर को एनालिसिस करो। सेक्टर को एनालिसिस करने के बाद फिर जाके तुम उसी सेक्टर का जो कंपनी है, उसी कंपनी को एनालिसिस करो, चाहे एनएससी हो चाहे बीएससी हो, डोंट केयर, जस्ट गो, ठीक है। ये हो गया एक सिस्टम। नंबर 2, यहाँ पर क्या करना चाहिए, तुम यहाँ पर देखो कि स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप, राइट, दिस इज ए बीएससी स्मॉल कैप। देखो एक सेकंड, इसको थोड़ा रिफ्रेश होने देते हैं।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास BSE स्मॉल कैप। तो ये स्मॉल कैप के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं। तो तुम यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं। तो इन कंपनियों को यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो भी कंपनियाँ हैं ना, इन सभी कंपनियों को यहाँ पर तुम पहले इसको इसका जो शीट्स है, इस शीट्स को यहाँ पर डाउनलोड करो, सभी कंपनी का शीट्स को डाउनलोड करके इसका जितना भी यहाँ पर जो नेम्स है, इस सभी नेम्स को तुम यहाँ पर क्या करो, तुम यहाँ पर जाके ट्रेडिंग व्यू पे इसको तुम ऐड करो, सभी को ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करो। जैसे यहाँ पर तुम यहाँ पर देखोगे कि कोई स्टॉक है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली स्टॉक टेक्निक अकाउंट। अगर मैं अपना पर्सनल खुद के अकाउंट के बारे में बताऊँ तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट पे एक बार शेयर कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं खुद जब मैं काम करता हूँ। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड। लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक सेकंड। ओके, ओके, दिस इज चार्ट। गाइस तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया नहीं, जो एक्सेल जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी मैंने एंट्री लिया था एंड ये भी ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम रीज़न है। देखो मैंने जो गैप अप के बारे में बताया था ना, कि अगर गैप डाउन हो तो स्टॉक नीचे ही जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी, उल्टा गैप अगर अप हो जाए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तो स्टॉक ऊपर चला गया, मान लो एंट्री नहीं ले पाया, जैसे मैंने एंट्री नहीं ले पाया था, फिर बहुत दिनों वेट करने के बाद स्टॉक जब नीचे गिरा, इस जगह पर जब पैटर्न बना है तब जाके यहाँ पर मैंने काम किया, फिर स्टॉक ऊपर। तो वही सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर भी वही सेम तरह के काम करते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन था कि किस तरह के स्टॉक मैं आइडेंटिफाई करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर देखो निफ्टी टोटल मार्केट, मतलब यहाँ पर मैंने टोटल मार्केट के ऊपर जो स्मॉल कैप जो कंपनी जहाँ पर मैं खुद अपना काम करता हूँ, सभी यहाँ पर ऑलरेडी है एनालिसिस है, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ। तो अभी मैं तुम लोगों के सामने मैं कुछ स्टॉक को मैं चूज़ करता हूँ। मैं एक्चुअली खुद कैसे काम करता हूँ वो मैं अभी काम करके दिखाता हूँ। 10 मिनट लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो मैं खुद के स्टॉक को कैसे निकालता हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने रेड लिस्ट करके रखा है, मैंने जहाँ से रेड लिस्ट मेरा ख़त्म होगा उसी जगह से दोबारा स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो आई थिंक कैस्ट्रोल के ऊपर मैंने लास्ट अपना एनालिसिस ख़त्म किया, नहीं कैस्ट्रोल नहीं, और भी नीचे आई थिंक। ओके, मन्नापरम फाइनेंस के ऊपर मैंने अपना लास्ट एनालिसिस ख़त्म किया था, ठीक है। एंड HDFC लाइफ ये भी था उसके ऊपर, IRFC सेंट्रल बैंक। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं चार्ट्स को यहाँ पर देखूँगा, एकदम चार्ट्स के अलावा कुछ नहीं देखूँगा। ओके, तो ये हमारे सामने कंपनी का चार्ट्स आ चुका है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वीकली में मैं काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीकली के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये वाला स्टॉक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। टेक्निकली अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, ये हो गया सपोर्ट, रेसिस्टेंट लेवल ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट, यहाँ पर एंट्री लेने का चांसेस था, खोद चुका हूँ मैं इसको। फिर दोबारा जाके एंट्री लिया था, फिर इसी जगह पे अगर स्टॉक नीचे आए तब जाके काम करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी थोड़ा ओवर मतलब ऊपर चला गया, मैं इसके अंदर एंट्री लेने के अभी मूड में नहीं हूँ। चार्ट देखकर मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। सुनाई दे रहा है मेरा बात सबको? हाँ শুনতে পাচ্ছি। ओके, सो फिर उसी तरह से
यहाँ पर देखो उसी तरह से दोबारा मैंने एक चार्ट को ओपन किया, ये वाला चार्ट, ठीक है। मैं जब स्पेस बटन दबाता हूँ दोबारा चार्ट, तो ये वाला स्टॉक पे देखकर भी ऐसा ही फील हो रहा है कि स्टॉक अगर मैं देखूँ तो इसी जगह से स्टॉक, ये जो दिस इज ट्रेंड, तो स्टॉक कब यहाँ पर ट्रेंड के ऊपर आया था, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी था, खो चुका हो, काम नहीं करूँगा, छोड़ दिया। फिर जाके वही सेम सिस्टम, पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आया। ओके, यहाँ पर कुछ हो सकता है। देखो ये वाला जो कंपनी है, मतलब मैं फ़िलहाल अभी, मतलब मैंने इससे पहले देखा नहीं, तो अभी मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, तो इसको देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका फील होने का कुछ कारण भी है। दिस इज़ ए लेवल, ये हो गया एक तरह की लेवल, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक ऊपर गया ब्रेकआउट देकर, फिर करेक्शन फेज़ में यहाँ पर स्टॉक आ रहा है, ठीक है। करेक्शन फेज़ में स्टॉक आ रहा है वीकली में। सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं इसका फंडामेंटली मैं देखूँ, ओके, पहली बात तो है मेरा सिस्टम के अंदर मैच हुआ ही नहीं। मार्केट कैप ह्यूज, ठीक है, लेकिन ह्यूज होने के बावजूद भी इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट प्राइस कम चल रहा है, तो मेरा हिसाब से मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कैप से, तो वो यहाँ पर काम कर सकता है। किस तरीके से काम कर सकता है, ये स्टॉक यहाँ पर, ये जो ऊपर है ना, यहाँ पर एक गैप था, देखो गैप को यहाँ पर नीचे गैप दिया, गैप देने के बाद उसको फिल करने के लिए ऊपर गया स्टॉक। लेकिन मुझे क्या पता कि स्टॉक फिर से नीचे नहीं आएगा, कोई रीज़न नहीं है। एंड मैंने हर किसी को मैंने एक मेथड सिखाया था डे 1 या फिर डे 2 में। कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, हायर हाई बना के ऊपर जाता है, राइट, सभी को याद है ना ये वाला बात है। तो इसी तरह देखो, जब ये ऊपर जाएगा एक करेक्शन लेगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होने देना चाहिए वाला कंपनियों को, ठीक है। जब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होगा तब जाके मैं बाइंग सिग्नल को वेट करूँगा। जैसे यहाँ पर अगर देखो ऑलरेडी बाइंग सिग्नल है, डेली पे अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो ऑलरेडी बाइंग सिग्नल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर एक सेल सिग्नल चाहिए पहले, यहाँ पर मुझे चाहिए सेल सिग्नल। सेल सिग्नल देने के बाद स्टॉक नीचे गिरेगा, तब जब एक स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर जब यहाँ पर दोबारा बाई सिग्नल देगा, तब मैं यहाँ पर इसको परचेस करूँगा। एंड मिनिमम जो प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, मतलब 50% के, मतलब 30% के नीचे छोड़ूंगा ही नहीं है कंपनी को। तो ये इसको मुझे पसंद आया कंपनी, एंड अभी मैं इसको क्या करूँगा, रेड लिस्ट करूँगा। तो रेड लिस्ट अगर यहाँ पर जाओ, दिस इज़ अ रेड लिस्ट, देखो इसको मैं रेड लिस्ट कर दिया। तो मेरा जो रेड लिस्ट है सेक्शन, इसी सेक्शन के ऊपर अगर मैं चला जाऊँ, दिस इज़ अ रेड लिस्ट, यहाँ पर कंपनी ऐड हो गया, ठीक है। फिर दोबारा कोई कंपनियों को देखता हूँ, ओके, ये बढ़िया कंपनी ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है, आई थिंक, क्योंकि प्राइस भी अच्छा खासा चल रहा है। मतलब कंपनी का प्राइस 174 है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कंपनी का ओके, तो ओके, सो अगर फंडामेंटली बात करूँ, 1000 करोड़ से नीचे है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं है। बुक वैल्यू का, एक सेकेंड, कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड करंट प्राइस सेम टू सेम चल रहा है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब दोनों अभी एक ही लेवल पे आसपास है। इंडस्ट्री P36, स्टॉक का P11, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ सकता है। ROC पॉजिटिव, रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा पॉजिटिव, ज़्यादा उतना खास नहीं, कंपनी के पास खुद के पास भी पैसा है। ग्रोथ चल रहा है कितना, 41%, प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। सेल्स ग्रोथ इज़ ए वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेल्स ग्रोथ 20% चल रहा है। यानी कोई भी कंपनी अच्छा हो या ना हो, कुछ भी अच्छा हो ना हो, दो चीज़ हमेशा देखना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल की, 5 साल की, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, ये तो 100% देखना ही चाहिए। ओके, तो हर किसी को देखकर अच्छा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें कॉन्स भरा पड़ा है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेशियो अगर कैलकुलेशन करें तो रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.77 एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगर मैं बात करूँ सेल्स के बारे में, तो ओवरऑल कंपनी 2011 में 11 से लेकर अब तक सेल्स को इंक्रीज़ कर चुका है सीरियसली। तो ये बहुत बढ़िया है कि कंपनी एक्चुअली सेल्स को इंक्रीज़ कर चुका है। एंड फंडामेंटली ओके। टेक्निकली अगर मैं बात करूं
दिस इज़ अ वीकली में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो लेवल पे अभी कंपनियां है, ये जो लेवल है दिस इज़ ए सपोर्ट लेवल, सपोर्ट 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 एंड दिस इज़ ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है। एंड इसी सपोर्ट से तो अभी मैं एक देखूंगा ट्राइडेंट क्या बोलते हैं। ट्राइडेंट ऑलरेडी बढ़िया बड़ा कैंडल में यहाँ पर बाई सिग्नल दिया, ठीक है, मतलब ट्राइडेंट में यहाँ पर ऑलरेडी एक बाई सिग्नल प्रोवाइड कर चुके हैं ट्राइडेंट। डेली में अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पर ऑलरेडी इस जगह पे पैटर्न्स है, ठीक है, इस जगह पे एक पैटर्न्स है, पैटर्न्स को भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया। तो एज ए करेक्शन पे जब स्टॉक आएगा, मतलब 160 के ऊपर जब स्टॉक आएगा तब जाके मैं इसके ऊपर काम करूँगा। किस तरीके से काम करूँगा, डेली पे मान लो कि यहाँ पर बाई सिग्नल है ना, तो यहाँ पर वो सेल सिग्नल देगा, सेल सिग्नल देकर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब ऊपर जाएगा तब जाके मैं यहाँ पर काम करूँगा। किसके बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। समझ में आया सभी को कि मैं किस तरीके से स्टॉक को चूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ, फंडामेंटली भी देख रहा हूँ, वीकली भी देख रहा हूँ, डेली भी देख रहा हूँ, 3 घंटे भी देख रहा हूँ, फिर जाके एंट्री ले रहा हूँ एंड इसकी वजह से प्रॉफिट होता है। सिंपल सा बात है। तो आई थिंक विनय, तुम्हें तुम्हारा जो आंसर है वो आई थिंक मिल गया, राइट। एंड तुम्हारा जो स्टॉक से तुमने जो स्टॉक के बारे में बताया, इसको मैं थोड़ा एनालिसिस करके देता हूँ। স্যার অপশন ট্রেডিং এর জন্য 5 মিনিট বেস্ট। ऑप्शन के लिए 5 से ज़्यादा, देखो 15 मिनट में वैलिड सिग्नल मिलता है, ठीक है। 5 मिनट उतना खास नहीं है। 5 मिनट में कभी लगेगा सेल, कभी लगेगा बाई, ओवरऑल लॉस ही रहेगा। सबसे बढ़िया है तो मतलब सबसे बढ़िया है मतलब हायर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम जो एनालिसिस मैंने तुम्हें सिखाया था उसको याद करो, मल्टी टाइम फ्रेम। तो विनय, ये जो कंपनी है जिसके बारे में तुम बता रहे हो, बहुत बढ़िया कंपनी है। मतलब फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि एक सेकंड, इसका फंडामेंटल पहले देख लेते हैं। चार्ट तो बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है। अच्छा, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ख़राब है, लेकिन सेल्स ग्रोथ 1 साल का इतना बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल का बहुत बढ़िया। कंपनी मार्केट का भी बहुत ठीक है, छोटा है। ROC 1.2, रिटर्न ऑन एसेट, फंडामेंटल बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, एकदम ज़ीरो पे है, ठीक है। मतलब नेगेटिव भी नहीं है फंडामेंटल, पॉजिटिव भी नहीं है, ज़ीरो है फंडामेंटल बेसिकली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली जो सेल्स है कंपनी का, जो सेल्स एक्चुअल सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इसके बेसिस पे टेक्निकली अगर बात करें तो डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रेंड, ये हो गया एक तरह की ट्रेंड, जहाँ दिस इज़ अ प्राइमरी ट्रेंड एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी ट्रेंड। ईजीली स्टॉक 66 पे आ जाएगा अगर स्टॉक 60 के ऊपर आ जाए। 60 के ऊपर आने के बाद जब स्टॉक बाई सिग्नल देगा तब इसके ऊपर 100% मेरा हिसाब से काम करना चाहिए सभी लोगों को। मिनिमम 20% प्रॉफिट 100% मिलेगा। मैं रेड लिस्ट के ऊपर करके रखता हूँ। बहुत ये वाला बहुत बढ़िया कंपनी है, मतलब ऐसा लग रहा है। वीकली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाँ ठीक ही है, बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कंपनी आया था। IPO तो 2018 में यहाँ पर लॉन्च हुआ। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही है कि शॉर्ट स्विंग करने के लिए स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग के बारे में तो मैं यहाँ पर एंट्री कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि लॉन्ग करो। 60 के ऊपर, मतलब 60 से नीचे, मतलब 58 59 पे अगर स्टॉक आए तब जाके जब बाई सिग्नल दे तभी काम करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं अपना जो टूल्स है ट्राइडेंट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखो कितना पावरफुल सिग्नल देता है ट्राइडेंट। तुमने एक ट्रेंड बनाया और उसी ट्रेंड से यहाँ पर क्या होता है ना, मैं नॉर्मली बाइंग ट्रेंड लाइन सभी को सिखाता था कि बाइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तब काम करना चाहिए। अभी बाइंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जोन आइडेंटिफाई करो और जोन के आसपास पे जाके सिस्टम को आइडेंटिफाई करो, फिर इसी जगह पे ढूंढो ट्राइडेंट क्या बोलता है। तो देखो ट्राइडेंट क्या बोला, बाई करो, और बाई करो कौन सी प्राइस पे, 31 पे। और स्टॉक अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल में बात करता हूँ तो बाइंग ट्रेंड लाइन कहाँ पर बाई करने के लिए कह रहा है, 34 में, और ट्राइडेंट कह रहा है 31 में, राइट। फिर जाके दोबारा इसी जगह पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी देखो सेम कहानी, सिग्नल थोड़ा बाद में आया लेकिन फिर भी सेम कहानी है कि उसने बहुत वैलिड सिग्नल दिया। मतलब इस तरह के अगर सिग्नल मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया। पहले बाइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करते फिर जाके सिग्नल प्रोवाइड करते, तब वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है।
तो यहाँ पर भी तुमने देख लिया, बाइंग सिग्नल दिया, फिर स्टॉक इसी जगह से कितना परसेंट ऊपर, अगर मैं इसी जगह से कैलकुलेशन करूँ तब भी 33%। फिर देखो वही सेम प्लेस, इसी जगह से दोबारा बाइंग ट्रेंड, मतलब यहाँ पर दोबारा बाई सिग्नल दे रहा है, तो बाइंग सिग्नल को फॉलो करो, स्टॉक ऊपर। यहाँ पर सेल सिग्नल को नहीं फॉलो करना चाहिए। तो टूल का कुछ डिसएडवांटेज भी है, जो है सेल सिग्नल, मतलब तुम्हें खुद जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जोन में बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली सेल कहाँ पे करना है, शॉर्ट सेल कहाँ पे करना चाहिए, तो वो वाला लेवल आइडेंटिफाई करो, फिर सेलिंग का सिग्नल ढूंढो। सेलिंग का जो सिग्नल जब देगा तभी जाके सेल करना चाहिए। तो आई थिंक विनय, तुम्हारा और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो हसीबुर, अभी तुम्हारा और कोई काम है, तुम मुझे बताओ। স্যার ওই তাহলে অপশন ট্রেডিং এর জন্য তাহলে তাহলে 15 মিনিটটাই বেস্ট। হ্যাঁ, অপশনের জন্য 15 মিনিট বেস্ট। আর এখন শুধুমাত্র তুমি ইয়ে করো, শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করো, জাস্ট প্র্যাকটিস করো, কোনো ট্রেড নিতে হবে না, জাস্ট প্র্যাকটিস। আমি যখন তোমাকে টুলটা দেবো, আর মাত্র 1 মাস ওয়েট করো, 1 মাসও লাগবে না, টুলটা পাও, টুলটা পাওয়ার পরে দেন কাম করো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, তো ফাইনালি ওকে, তো গৌতম বাবু, এবার তুমি, তোমার যদি কিছু ইয়ে থাকে তাহলে বলো। আমার তো কিছু অল্প কিছু হোল্ডিং রয়েছে, সেটা হচ্ছে হ্যাভেলস। হ্যাভেলস, রাইট? অল্প সে তো বলেছিলাম আমি, হ্যাঁ অল্প হ্যাভেল কিছু হ্যাভেলস রয়েছে 1300 টাকার আশেপাশে কেনা। হ্যাভেলস আমি মনে হয় দেখেছিলাম একটু আগে, রাইট? না, হ্যাভেলস আজকে দেখা হয়েছিল। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল, হ্যাভেলস দেখা হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাভেলস দেখা হয়েছিল। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাভেলস দেখা আছে। 1300 টাকার মতন, হ্যাভেলস 1300 টাকার হ্যাভেলসে আশেপাশে। ডিটেলস অ্যানালিসিস আছে, তুমি ভিডিও দেখলেই পেয়ে যাবে, প্রথমেই হ্যাভেলসটা দেখা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আর ওটা হোল্ডিং আছে। আর 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 হ্যাঁ, আর আছে ভোল্টাস কিছু, ওটাও দেখা হ্যাঁ, হয়েছে একটু ওটাও আগে। দেখা আছে। ভোল্টাস আছে 970 টাকা আমার কেনা আছে, মানে আমি হোল্ড করব, ধরে রাখা এখন হোল্ড হোল্ডিং এ আছে। ভোল্টাস হোল্ড করবে? আমি তো নাকি একটা ছেড়ে দেবো? ডিসিশন দিয়েছিলাম তখন, সেই ডিসিশনটাকে ফলো করতে পারো। হ্যাঁ সেটাই তো বলেছে, সেটাই করবো, ছেড়ে দেবো। না তখন তো আমি আগে থেকে কেনা এগুলো, আমি ছেড়ে দেবো এটাকে, আর ভোল্টাস রাখবো না। আর একটা আছে জুবিল্যান্ট ফুড বলে, ওটা আছে কিছু। হোল্ড করো এটা। হোল্ডিং, টোটালি হোল্ডিং। কোনটা? জুবলেন্ট ফুড। হ্যাঁ জুবিল্যান্ট ফুডটা আছে কিছু, হুম 300 না 400 মতন রয়েছে। হুম হুম ওকে। আর তুমি তুমি সেদিনকে বলেছিলে একটা স্টকের কথা, সেটা কিছু সাইনাইট, সেদিনকে, হ্যাঁ 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 ওইটা কিছু আমি সেদিনকে ওটা কি প্রফিটে রান করছে, ট্রাই মানে 1 করেছি। টাকাও কি প্রফিটে চলছে? 1 টাকা বলতে ওই 13 টাকার মতন আছে। ও ঠিক আছে, যাক, প্রফিট তো দেখতে পাচ্ছ। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি, আমি তো সেদিনকে আমি করিনি, হোয়াটসঅ্যাপ তো আমি দেখতে পাইনি, আমি ফোনটা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে, তখন তো একদম 3:30 বাজে প্রায়, হ্যাঁ, 3:15 3 মিনিট বাকি ছিল, হ্যাঁ একদম রাইট। 3 মিনিট বাজে ছিল, তখন আমি শেষ মুহূর্তে গিয়ে আমি ঝট করে খেতে বসেছিলাম, উঠে গিয়ে এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ এই কথাই রয়েছে। আর বাকি যেগুলো রয়েছে, টাটা স্টিল, টাটা পাওয়ার, ওইগুলো তো আমার লসে চলছে, সে অনেক আগে আমি বেশি দামে ক্লাস করার আগে সেগুলো ধরে রেখেছিলাম, সেগুলো চলছে এখনো, যতদিন না হয় রিকভারি করবো। স্যার ওই জুবিলিয়ান্ট ইনগ্রেভিয়া একটু দেখবেন। একদম। ওকে, স্যার এই ফান্ডামেন্টালটা একটু। ওকে, একটা কথা বলছিলাম, হ্যাঁ বলো। হ্যালো, হুম 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 বলছি এখন কিছু নতুন কোনো সাজেশন আছে কি, কোনো স্টক বাই করার কোনো রেকমেন্ডেশন? ওটা ছাড়া, ওটা তো পেয়ে গেছি। যখন সাজেশন মানডে, আসবে তখন ডেফিনেটলি বলা হবে। আর মানডে থেকে কি মার্কেট একটু ডাউনের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, প্রবাবিলিটি সোমবার? মানডে, হ্যাঁ মানডে ডাউনে যাওয়ার প্রবাবিলিটি আছে। ঠিক আছে। ওকে, তো কোম্পানির কথা যদি বলি, মার্কেট ক্যাপ এত,
প্রথমত এই যে কোম্পানিটা শুনতে পাচ্ছ, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। এই যে কোম্পানিটা, ইটস এ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক কোম্পানি। এটা আমি আমার রেড লিস্টে রাখবো ডেফিনেটলি। এই যে কোম্পানিটা, এই কোম্পানিটা একটা স্ট্র্যাটেজি দেখো, হায়ার হাই বানিয়ে উপরে উঠছে, রাইট? হায়ার হাই বানিয়ে উপরে উঠছে। সো এই জায়গা থেকে স্টক আবার হায়ার হাই বানিয়ে উপরে উঠবে। যদি স্টকে হোল্ডিং থাকে বলবো হোল্ড করতে, কারণটা হচ্ছে স্টক একটু কারেকশনে আসবে, 450-এর লেভেলে আশেপাশে আসতে পারে, 50-40। ওখান থেকে স্টক টোটালি বাউন্স করবে, মানে আমার একটা প্রেডিকশন যে ওখান থেকে স্টক টোটালি 40%-এর বাউন্স হবে। এবং স্টকে আমি নিজেও হোল্ড, হয়তো আমি স্টক বাই করতে পারি। স্টকটা কখন বাই করতে পারি? এই যে সেল সিগন্যাল দেখেছো, নিচে থেকে একটা বাই সিগন্যাল যখন আসবে, সেই বাই সিগন্যালে আমি হয়তো স্টকটাকে বাই করলেও করতে পারি, ঠিক আছে? কারণ আমার সিস্টেমের মধ্যে আর কি আসছে, যেখানে আমি আমার সিস্টেমে আমি কী কী ফলো করি তুমি নিশ্চয়ই জেনেছো আজকে, যেখানে আমি মার্কেট ক্যাপটাকে কিন্তু খুব ফোকাসফুলি আমি কোম্পানির মার্কেট ক্যাপটাকে পজিশনে দেখি, এবং সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড দ্য ব্রেকআউট অ্যান্ড দ্য কারেকশন সিস্টেম, এগুলোকে আমি ফোকাস করি। তো ওকে, কোম্পানি হোল্ড করো ডেফিনেটলি, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে। ओके एवरीवन, तो आर करो आई थिंक कोनो क्वेश्चन नहीं, किसी के पास और कोई क्वेश्चंस है? না স্যার আজকে খুব ভালো হয়েছে, हाँ এই আপনি যে ক্লাসটা রেখেছেন সত্যি খুব ভালো হয়েছে। ओके ओके এরকম আলোচনা থাকলে না আরো মানে খুব মোটিভেটেড ফিল হবে। হ্যাঁ একদম একদম একদম। সো ওকে, টুডে ক্লাস ইজ এন্ড অ্যান্ড আচ্ছা এর রেকর্ডিংটা কি পেয়ে যাবো আমরা? একদম রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো, আমি গ্রুপেই পাঠিয়ে দেবো। আজকের ক্লাস এই অবধি। এরপরে আচ্ছা আমরা ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য। सितंबर मासेर लास्ट है, यानी सितंबर महीने का जो लास्ट में हम फिर से क्लास को यहाँ पर शेड्यूल कराएंगे, एंड उस क्लास में फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सितंबर महीने में क्या क्या किया जा सकता है। जैसे গৌতম বাবু তুমি একটা জিনিস এখানে দেখেছো আই থিঙ্ক, যে কিছু স্টক আছে যেখানে আমি বলেছি যে স্টকগুলো বাই করা যেতে পারে এই ধরনের লেভেলে, এই ধরনের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করলে, তো তুমি সেই ধরনের স্টকে তুমি বাই করতে পারো, ঠিক আছে? তো তার জন্য ভিডিওটা দেখতে হবে আরেকবার। তো ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এই অবধি, আমি রাখছি, ভিডিওটা আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, সবাই দেখে নিও। ওকে চলো।